as we all are here to discuss the essay paper, one of the most discussed paper also, because if you see, people are not getting much marks in the essay papers. There was a time 4 5 years back, people were getting very high marks in the essay paper. People were getting 150 plus, people were getting even 170 also. But now if you see, over the last 2 3 years, essay marks have come down. On an average, the marks is somewhere around, even those who are getting selected, the rankers, including your rank one also, if you see the marks, they are not that kind of marks which we were used to seeing, those kind of marks 4 5 years back. And so that is why today this is one of the most discussed paper amongst the aspirants also. And essay के marks have become आज के time पे average marks like 90, 92, 95, 100, 104, 105. It is similar to what generally we are getting in GS papers also. है ना, नहीं तो पहले क्या बोलते थे, essay gives you a big lead. In GS you get the average marks, most of the candidates are getting average marks, but when it comes to your essay, that is where you, like, people used to focus for essay, but marks घूम फिर के GS वाले हो जा रहे हैं, है ना. So that is what we have to think, why this is happening, why on an average the marks or the scores of essay are coming down every year. Average, exception is not the rule, exception hai, people are getting 130 plus, people are getting 140 plus, but those are exceptions. ठीक है, तो वो हम general rule नहीं लेंगे. General rule is where people overall we are seeing marks have come down. ठीक है, so what we are going to do in this class today is we'll talk in general about this paper, है ना, because see बहुत technical और बहुत specific होकर तो नंबर नहीं आ रहे. ठीक है, तो एक पहले तो एक बिल्कुल like a raw fresh slate, those, many of you have appeared for mains also, many of you have got marks also. पिछले 2 3 बार mains लिखा है, कई लोग selected भी हैं, but भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ. let us begin it as a fresh slate. जैसे आप नया attempt लिखते हो तो आप बिल्कुल नए सिरे से start करते हो. और सबसे पहले कोई भी subject when you start is, what you do is you go to the basics, है ना. Though we know that this is the basic, we are used to this basic, but still we again go back to the basics. So we will talk about the basics of essay, which most of you would be knowing, है ना, but still it is important, है ना. basic बार बार ध्यान रखो, है ना. यूपीएससी में हम क्या कहते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ लो, बेसिक्स पढ़ लो, भले आप उसके बाद उसके ऊपर आगे चलो. तो बेसिक्स हम सबको पता है, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है, तो इफ यू लुक एट योर essay paper, and an essay paper is one of the most important papers of this examination, and UPSC has put this paper with a big purpose also. And because what if you see what is the reason behind or the rationale behind the essay paper, and first we should try to understand ki why this paper is there. Because if you understand why the paper is there, then accordingly you will try to fulfill the the demand of that why, है ना. वो आप में आप वो fulfill करोगे, ये क्यों है और इसकी क्या जरूरत है ना. So like UPSC is asking you GS papers, and within GS papers also you have so many subjects, है ना. You have paper 1 में 3 4 subject, 2 में 3 4 subject, है ना. So you have lot of subjects, but still a different paper essay is there. Essay is basic because see, now if they are testing your knowledge through GS paper, it is just the test of your knowledge. But today in this world, है ना, we just, do we need only knowledgeable people? एक सिविल सर्वेंट सिर्फ नॉलेजेबल ही होना चाहिए, ओनली नॉलेजेबल? नो, ही शुड और शी शुड हैव सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर सिविल सर्वेंट, यू आर सर्विंग द सोसाइटी, है ना. तो आपके पास व्हेन यू आर सर्विंग द सोसाइटी, तो व्हाट शुड बी देयर इन यू? दैट काइंड ऑफ एम्पथी, दैट काइंड ऑफ ह्यूमेननेस. आप देखो टॉपिक्स भी जो ऐसे के आ रहे हैं, वो आपके इन इन जो नॉर्मल आपकी जो ये वैल्यू सिस्टम है उसके अराउंड है. दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड ह्यूमेननेस, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड ह्यूमिलिटी, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड एम्पथी, है ना. तो ये सारी चीजें आपके जीएस या सब्जेक्ट में जो है आपका ऑप्शनल, उसमें जनरली टेस्ट नहीं हो पाती हैं, है ना. तो ऐसे जो है आपका, बिकॉज अ सिविल सर्वेंट ऑफ कोर्स शुड बी नॉलेजेबल, है ना. वन थिंग इज नॉलेज, बट नॉलेज विदाउट दिस वैल्यूज, है ना, वो
एक अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है. दैट इज व्हाट इज, इफ यू लुक एट देयर टॉपिक्स आल्सो, दे आर सेइंग विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द क्रॉसरोड्स ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक. क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है. तो दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो, है ना. तो ऐसे पेपर इज अ पेपर विच इज अबाउट टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी एंड द वे नाउ दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस, है ना. जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पे आपका आपका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हो जाता है एज अ पर्सन. सो दैट इज व्हाई दिस पेपर इज डिफरेंट. डोंट ट्राई टू मेक इट वेरी टेक्निकल या मैकेनिकल मत बनाओ, जो आज के टाइम पे हम कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग मैकेनिकल मार्क्स ऑल्सो. एवरेज मार्क्स सबको आ जा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से एक ढर्रे से हम सारे लिख ले रहे हैं. सो वी आर गेटिंग दैट एवरेज मार्क्स. सो this essay paper is about test of your personality. It is about what kind of personality, a personality which has a visionary thought process, a personality which has the ability or capability to understand the minute details of something, a personality which can link one thing with so many other aspects, है ना. a personality which is not just a robot, है ना. वो AI के टाइम का खाली पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी विच ऑल्सो हैज ह्यूमन एस्पेक्ट अटैच टू इट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज द पर्सनालिटी दे आर टेस्टिंग थ्रू दिस पेपर. एंड दिस पेपर इज वन पेपर विच इज वेरी डूएबल ऑल्सो. As I asked you in the beginning, how many of you have a fear for this paper? Many people said yes, we have a fear. Why to fear? ये पेपर डरने वाला तो है ही नहीं. This is very very easy paper. प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम प्लीज थोड़ा सा, हेलो, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोग इसको इतना टेक्निकल बना के और हमने ये देखा कि 150 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट लाइक दिस. डोंट गो विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. गो एंड जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ फ्लॉलेसली, फियरलेसली, है ना. तो दिस इज वेरी डूएबल पेपर. एवरेज कम हुआ है, ठीक है, तो भी बच्चों को नंबर आ रहे हैं. आपको भी आ सकते हैं, वो भी आप ही की तरह है, ठीक है. सो इट इज डूएबल पेपर, इट इज वेरी इजी पेपर, you know. UPSC is not asking you any kind of, or not giving you any kind of directive that you have to write this particular topic in such and such manner, you know, because they are not adding any tail words to this, you know. Even some of the questions which could have been easily asked in GS or in your optional paper, they are asking it in your GS, in your essay paper, you know. So there is a difference, you know, there is a difference, and there is a lot of liberty to you, there is a lot of freedom to you to write in this paper, ठीक है. तो इस पेपर से घबराना नहीं है ना. घबराते क्यों हैं हम? क्योंकि एक तो हमारे को लिखने की आदत नहीं है, दूसरा हमें चीज़ों को इन डेप्थ सोचने की आदत नहीं है. एंड फर्दर थैंक्स टू योर चैट जीपीटी एंड AI, जो many of the aspirants are using, जो थोड़ा बहुत हम अपना दिमाग लगाते हैं वो भी खत्म हो जाता है. हमें लगता है वी आर वेरी स्मार्ट, हम तो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपकी तरफ 50 और स्मार्ट होंगे, ठीक है. और वही चीज चैट जीपीटी में एनेक्डोट टू दिस ऐसे, ठीक है, सबने एनेक्डोट रट लिए उसमें से बना करके. अब आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन घूम के एग्जामिनर के सामने बार बार वही आ रहा है, तो नंबर तो एवरेज आएंगे ही ना, ठीक है. सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग योर own brains, ठीक है. Okay, now what is the directive given by UPSC for this paper, है ना. हैव वी सीन दैट कि सिर्फ बस ऐसे लिखना है? UPSC हैज रिटन 4-5 लाइंस ऑन दिस पेपर, है ना. तो वो भी थोड़ा समझो कि वो क्या बोल रहा है आपको, है ना. बिकॉज इफ UPSC इज टेकिंग that much of pain to write 4-5 sentences, it makes some sense. नहीं तो वो सीधा लिखता फर्स्ट पेपर GS फर्स्ट वुड बी ऐसे, नीचे कुछ नहीं लिखता, है ना. बट वो लिख रहा है ना. और ये बहुत कॉमन सी बात, 4 लाइनें हैं जो सबको पता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन आई वुड अगेन रिपीट इट, ठीक है. व्हाट इज UPSC गिवन एज अ डायरेक्टिव फॉर दिस ऐसे पेपर, है ना. तो ऐसे पेपर के लिए द डायरेक्टिव इज दैट candidates may be required to write essays on multiple topics. So if you see your essay question papers, you will see that they are asking you essays on multiple topics. You cannot say that essays are only oriented towards science and technology, or only towards social issues, or only towards environmental issues, या governance issues, या quotes आ रहे हैं, है ना. multiple topics हैं, है ना. So you have to be prepared from
मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, है ना, तो आपको जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से तैयार रहना है ना। एक और गड़बड़ क्या होती है कि जैसे जिनको स्पेशली डर लगता है कि हमको ऐसे लिखने में डर लग रहा है, व्हाट जनरली दे डू इज, आई एम कंफर्टेबल इन राइटिंग ऑन गवर्नेंस इश्यूज, आई एम कंफर्टेबल इन राइटिंग ऑन ऑन सोशल इश्यूज, स्पेशली विमेन इश्यूज, है ना। वो तीन चार चीजें दिमाग में बना ली, उसके बाद हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसमें कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे, है ना। वहां पे कोई और डायमेंशन आता है तो हम घबरा जाते हैं। अब विमेन के नाम पे भी सिर्फ विमेन नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का कंपैरिजन आ जा रहा है आपको, फिर आप घबरा जा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू राइट ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दैट इज वेरी मच क्लियरली रिटन बाय यूपीएससी, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, है ना। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, है ना। डोंट गेट हे वायर्ड, इधर उधर नहीं घूमना है आपको, यू हैव टू बी वेरी क्लोजली टू द सब्जेक्ट, बिकॉज डाउन द राइट, है ना, वंस यू गेट सेलेक्टेड, यू पीपल विल बी making the policies for the government, है ना। you people will be making और drafting the memorandums, है ना, सब कुछ आप करोगे, ठीक है। आप गवर्नमेंट के ड्राफ्ट्स बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, मेमोरेंडम्स बनाओगे। अब आपको पॉलिसी बनानी है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, और आपको पता ही नहीं है कि फोकस आप एनवायरनमेंट का बनाने की जगह आपने एआई के ऊपर ही उसमें डाल दिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज, यू हैव टू keep closely, that is what is tested here, ki how much focused you are, whatever task or whatever thing you are talking about, are you keeping close to it, that's a test of your personality। नहीं तो किसी किसी को कहते हैं ना, अरे ये तो बोलते बोलते कहाँ से कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, दैट्स द फॉल्ट इन द पर्सनैलिटी, क्योंकि वो अपनी बात को जो है ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाता है। सो यू हैव टू कीप क्लोजली टू द टॉपिक, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू सब्जेक्ट ऑफ द एसे एंड टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली, है ना। तो अ गुड कम्युनिकेशन इज व्हाट, अ गुड कम्युनिकेशन इज वेरी ऑर्डरली कम्युनिकेशन, है ना। एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा संवाद क्या होता है, जो एक बिल्कुल कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप है ना। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको उसको रिप्लाई कर रहा है, दैट्स अ वेरी ऑर्डरली, है ना। ऑर्डरली होता है तो आप किसी के थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं, कितनी क्लैरिटी है, कितना डेप्थ है उसमें, है ना। सो दैट इज व्हाट इज टेस्टेड एंड यू हैव टू राइट कंसाइजली, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, वेरी पिन पॉइंटेड, है ना, because at the end of the day you might have observed a politician speaking on a particular subject and a bureaucrat speaking on a political subject, है ना। bureaucrat is very pinpointed, very concise. if a question is asked by a journalist, supposedly एक politician बैठा है और एक journalist बैठा है, sorry एक आपका जो है civil servant बैठा है, same question दोनों से पूछता है, ठीक है। मान लो पहलगाम के ऊपर ही कुछ पूछा, है ना, look at the reply of the government spokesperson and look at the reply of the politician, there is a difference, है ना। आपने अभी देखा प्रेस रिलीजेस देखा, एमईए का देखा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का देखा, है ना, इट इज वेरी पिन पॉइंटेड, that is what is tested, because this exam is for a job for which they are testing your skill sets, ठीक है। शुरू में तो आप चलो ग्राउंड में काम कर रहे हो, बट लेटर ऑन व्हेन यू गो हायर अप द लेडर्स यू आर इनटू पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, है ना, दैट शोज अ फोकस्ड माइंड, ठीक है। एंड क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है इट शुड बी इफेक्टिव एंड इट हैज टू बी वेरी टू द पॉइंट, दैट इज वेयर यू विल बी गेटिंग मार्क्स। तो इफेक्टिवनेस आपको लानी है, इफेक्टिवनेस कैसे लानी है, दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग थ्रू दिस आपका जो ऐसे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड एग्जैक्टनेस। सो दैट इज 3-4 लाइंस व्हिच हैज बीन रिटन बाय यूपीएससी एज अ डायरेक्टिव। तो चीज समझ में आती है कि भैया यूपीएससी बोल रहा है हमें तैयार रहना है, मल्टीपल किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। यू कैन नॉट से दैट आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और यूपीएससी ने सेक्शन ए के चारों एआई पे डाल दिया या सेमीकंडक्टर पे डाल दिया या वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, ये तो यूपीएससी की नाइंसाफी है। नो, दे हैव क्लियरली सेड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल टॉपिक्स, है ना। इट्स अ जर्नलिस्ट एग्जाम, जर्नलिस्ट को हर किसी के बारे में पता होना चाहिए, यू कैन नॉट से आई हैव ओनली दिस नीश, है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल टॉपिक्स, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कट इन योर आइडियाज,
in your thought process, and also the way you are conveying your thought process. That should be very clear cut, very pinpointed, very focused. So effective and exact presentation is going to get the marks. So that is what is the directive. Now when you look at the UPSC question paper, ठीक है, if you observe the trend, है ना, because अभी थोड़ी देर पहले we were talking about why we are seeing reduction in the marks. So let us see questions कैसे आ रहे हैं और मार्क्स जो है आपके जो है उसमें रिडक्शन भी कैसे हो रही है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है. इफ यू लुक एट योर क्वेश्चन पेपर 2013, 2013 का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो, देयर वर ओनली 4, है ना, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स द पैटर्न इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, 4 ईच इन one section, ठीक है. So that was the trend which started in 2014 till 2013. it was आपके जो है 4 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है. Now 2013 onwards or 2014 onwards, if you see, initially the questions were very GS specific questions. आपके जो शुरू के क्वेश्चंस थे ना वो बहुत जीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, है ना. they were more into like GS or maybe current related questions, है ना. if you look at your questions, some of your questions of previous years, I'll just read it out, है ना, because देखो analysis करना is very important, है ना. आपका analysis of the questions are very important. they are asking you, with great power comes great responsibility, ठीक है. पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पेपर 2, है ना. आप जो पढ़ते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, उसी के अराउंड ये है, ठीक है. इज द ग्रोथ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन गुड फॉर द यूथ? Is the growing level of competition good for the youth? Interrogation. Very specific. Competition good for the youth or not good for the youth? ठीक है. Are the standardized tests good measures of academic ability or progress? ठीक है. very pinpointed, very GS like. Is sting operation an invasion on privacy? So the questions were quite pinpointed, they were quite आपका जो है GS linked questions were there, है ना. वैसे ही फिर बाद में आपका आया कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना. फिर आपका रेलिवेंस ऑफ नैम, दिस काइंड ऑफ वेरी पिन पॉइंटेड, वेरी जीएस ओरिएंटेड, है ना. और कैन टूरिज्म बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो जीएस लिंक्ड थे, जीएस वाला नॉलेज लगा रहे थे, नंबर 150 170 आ रहे थे, है ना, because it was very close to your GS topics. Not much of your analysis or that kind of your in-depth analysis was required, ठीक है. interstate dispute in federal India, interstate water dispute in federal India, ठीक है. तो more of your GS kind of questions and more of your marks were also like you were getting very good marks also, ठीक है. but then slowly it has changed the pattern. The pattern then was GS but intermixing of topics also, and the intermixing is where they are not just focusing on your GS, they are also focusing on your observations. अगर आप देखोगे आज के टाइम पे आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर अराउंड योर ऑब्जर्वेशंस. इफ यू आर ऑब्जर्वेंट, जैसे आपको क्वेश्चन आया, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज, फॉरेस्ट आर द केस स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक इन एक्सीलेंस, है ना. नाउ फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एक्सीलेंस, इकोनॉमी. नाउ दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, how you are observing the things, what is happening around you, what is happening to your ecosystem, है ना. उसमें से कैसे आप सीख रहे हो, कैसे हम फॉरेस्ट से सीख सकते हैं. so this is not something completely about your GS. GS is there, इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या है, क्या components है, how it works. इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या components है, how it works. but then it is beyond that, it is about your analysis, है ना. इट इज अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, है ना. तो ये आपका नॉलेज प्लस योर एनालिसिस, योर ऑब्जर्वेशन, है ना. दैट इज व्हाट इज नाउ दे आर आस्किंग. देन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक process of self discovery has been technologically outsourced, ठीक है. a process of self discovery,
सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑल यू, और अपना जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम जो है, या अपना जो आपकी एबिलिटीज है, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो आपकी इमोशनल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, दैट इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ. जनरली वी कंसीडर इट एज अ वैल्यू सिस्टम जो डेवलप करते हैं हम, दैट इज एथिक्स वाले में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है. एंड देन टेक्नोलॉजी. So it is about technology, it is about your वैल्यू सिस्टम. तो यहाँ जीएस कहाँ आ रहा है? जीएस आ रहा है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो भी आपके वैल्यू सिस्टम है, ह्यूमंस के जो भी आपकी सेल्फ डिस्कवरी के जो एबिलिटीज हैं, वो आप जीएस में पढ़ रहे हो. उसी तरह टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं वो आप जीएस में पढ़ रहे हो. बट नाउ यू हैव टू गो बियॉन्ड, यू हैव टू शो द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टू, है ना. दैट इज व्हाट इज योर हाउ यू कैन ऑब्जर्व, है ना. अब क्या है, आज के टाइम पे अपनी पर्सनालिटी हमें खुद नहीं पता, है ना. फेसबुक में या आपके वो मैसेजेस आते हैं कि इस 5 उंगली ऐसे रखो, इसको टच करो, यू विल नो योर पर्सनालिटी. सो दैट इज व्हाट, है ना, आते हैं ना इस टाइप के मैसेजेस. एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग. देन अमंग्स द यंगर जनरेशन, पीपल लाइक यू, है ना, आप लोगों की जनरेशन, या आपसे थोड़े और छोटे बच्चे, या आपसे थोड़े और 1-2 साल बड़े बच्चे, आज के टाइम पे क्या है, फटाफट क्या खाया, है ना, वो भी फेसबुक में डालो, कहाँ गए फेसबुक में डालो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम में डालो. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड तो जा रहा है, हम कहीं मिस आउट ना हो जाए. दैट इज व्हाट इज द जनरल फिनोमेना दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. And that is what UPSC has asked you, fear of missing out. So the questions, if you see the pattern of UPSC is not just only on your GS specific. GS ka knowledge is required, है ना, knowledge of course is required, but because you cannot analyze anything without any knowledge. So you have to have the knowledge of science, you need to have the knowledge of your what is happening to your climate, what is happening in the wars, what is happening in जैसे आपका जो है पॉलिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, यूएन में क्या हो रहा है, नॉलेज होगा तब उसके ऊपर आप एनालिसिस. सो यू नीड नॉलेज, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड what is happening, why it is happening, आपका एनालिसिस क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. So there was complete GS specific questions. Then जिसमें आपका जो पहले लिखने का तरीका was also more of factual information, little bit of analysis. But now it is not the trend. And then some questions are linked like this. Subjects are being brought together. You have to sense the linkage, or it is based on your observations, uske around questions hai. And then there are questions around processes also, processes which are important in our lives. Thinking, decision making, है ना, ये प्रोसेस है आपके, है ना. छोटी छोटी चीजें कि आप अपने आसपास से क्या, है ना, वो अपने आसपास क्या कर रहे हो, है ना. लाइफ में बहुत जरूरी है, भटकना भी जरूरी है ना. तो वो वंडरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया. आपका शिप इन द हार्बर इज सेफ, बट इट इज नॉट व्हाट शिप इज मेंट फॉर और मेंट टू बी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट. सो द प्रोसेसेस, है ना, स्टेटस को से आगे निकलो, लाइफ के जो प्रोसेसेस है उसके बारे में सोचो, उसके अराउंड क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड देन यू हैव क्वेश्चंस जिसको एब्स्ट्रैक्ट आप बोल रहे हो या कोट्स बोल रहे हो. सो दे आर आस्किंग यू सम ऑफ द फिलोसफीज ऑफ लाइफ, है ना, उसके अराउंड क्वेश्चंस आ रहे हैं. And some of the students who fear for this paper, one of the reasons is कि भैया एक तो लिखना नहीं आता, because 10th 12th के बाद we have stopped writing. If we have technical background तो वहाँ problem है. और दूसरा, now the topics that are coming are more of abstract topics, है ना. हमारा तो ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं है, हमारा तो फिलोसफी का बैकग्राउंड नहीं है. आई एम हैविंग मैथ्स एज एन ऑप्शनल, आई एम हैविंग फिजिक्स एज एन ऑप्शनल. सो नाउ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर देयर, ठीक है. तो यहाँ पे हम घबरा जा रहे हैं. नाउ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो आ रहे हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे विच रिक्वायर्स योर विच वेयर दे आर टेस्टिंग योर एनालिसिस, वेयर दे आर टेस्टिंग योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस, वेयर दे आर टेस्टिंग योर ऑब्जर्वेशंस. बिकॉज कोट क्या होता है, व्हाट इज अ कोट? कोट इज, और व्हाट इज ईडीएम, जो कोट्स होते हैं, या आपके जो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफीज होती हैं, फिलोसफी क्या है? What is a philosophy? It's a crux of your life.
फिलोसफी है ना, मतलब आपने हर जगह टेस्ट कर ली, इट इज अ क्रक्स ऑफ योर लाइफ, दैट्स द फिलोसफी, है ना। फिलोसफी बोल रहा है कि भैया वर्ल्ड में सब लड़ रहे हैं, आवर फिलोसफी इज वासुदेव कुटुंबकम। क्रक्स ये है कि भैया हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव लर्न कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कंसीडर योर सेल्फ एज अ फैमिली, है ना। फिलोसफी इज व्हाट क्रक्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, फिलोसफी डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टडी योर फिलोसफी ऑप्शनल फॉर दैट। और अगर पॉलिटिकल फिलोसफीज के ऊपर आ गया किसी, तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड जो हो रही है, फिलोसफीज उसी के अराउंड है। आप कोट्स देख लो, आप जो कोट्स आ रहे हैं, आपके जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आ रहे हैं, रिपेयर द रूफ वाइल द सन इज शाइनिंग, ठीक है। अब ये फिलोसफी क्या है, ये कोट के थ्रू एक फिलोसफी दिखाई है, एंड द फिलोसफी इज दैट वी शुड बी टेकिंग टाइमली एक्शंस, ठीक है। तो टाइमली एक्शन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, और ये हर जगह एप्लीकेबल है ना। जैसे मैथ्स में यू हैव इक्वेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल, न्यूटन्स के लॉ हैं, है ना, आपका न्यूटन का लॉ है, आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एप्लीकेबल, है ना, एक्सेप्शंस हैं कहीं पे, बट दे आर जनरली एप्लीकेबल। उसी तरह ये फिलोसफीज आर द क्रक्स ऑफ लाइफ व्हिच आर एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो फिलोसफी भी आपके उस टाइप के क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू, ठीक है ना। आपका जैसे ऑल दोस डोंट लिखे वंडरिंग वाला जो क्वेश्चन था, है ना, कि जो वंडर करता है वो जरूरी नहीं कि भटक जाता है, ठीक है। तो दैट्स अ कॉमन फिलोसफी, और इसी को लेकर के तो हम चलते आए हैं इतने सदियों से, तभी तो आपका डिस्कवरीज हुई है, इन्वेंशंस हुई हैं, लोग हैं। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस पेपर, इवन इफ यू सी द ट्रेंड इज नाउ from very subject specific, intermixing quotes and all those things are there, abstract philosophies are there, ठीक है। और आप अगर philosophies को भी if you analyze, है ना, if you analyze the last few years of your question papers, you will realize that these are some of the very common philosophies around which they are asking you questions, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दिस पेपर इज वेरी वेरी डुएबल। तो पहले नंबर बहुत आते थे बिकॉज आवर क्वेश्चंस वर आल्सो जीएस लाइक क्वेश्चंस, अब नंबर कम आते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज नाउ दे आर नॉट वेरी जीएस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। यू आर नॉट, you just don't have to write your knowledge, you also have to show the analysis, you have to show your overall personality in that. So that is why जैसे आप ऐसे भी सुनते होंगे कि मैथ्स साइंस में तो नंबर आ जाते हैं, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में। तो अब ये आपके टॉपिक से ही वैसे ह्यूमैनिटीज टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, एंड these are the topics which actually show your personality। जीएस टाइप में आपकी पर्सनालिटी नहीं पता चलती, अगर मुझे रटा हुआ है तो मैं भी लिख के आ जाऊंगी, आपको रटा हुआ है, आपकी और मेरी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो कब कब रिवील होती है, जब आपको एक फ्री उसमें बोला जाए आपको जो बोलना है आप बोलो, तब समझ में आता आप बोल क्या रहे हो, है ना। सो दैट इज व्हाट इज देयर, ठीक है। तो एक तो ये आपका टॉपिक्स आर वेरी वेरी जनरल, वेरी वेरी फिलोसफिकल, है ना। अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज देयर इज बिकॉज वी हैव सीन पीछे इतने नंबर आते थे, वी हैव बिकम वेरी मैकेनिकल इन राइटिंग ऑल्सो। अब हमने पिछले 2-3 साल से क्या देखा कि पहले 3-4 साल तक तो चलो ठीक है, देयर वर सर्टेन अप्रोचेस, एवरीबडी वाज फॉलोइंग दैट अप्रोच, है ना। आपको जो है पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे लिख लेना है ना। हिस्ट्री में भी आप चले जाओ, एंशियंट मेडिवियल मॉडर्न लिख लो, पॉलिटी में भी आ जाओ, इसके भी 4 सेक्शंस बना लो, है ना। सोसाइटी में आ जाओ, विमेन कर लो, चिल्ड्रन कर लो, ये कर लो, तो आपके 3 सेक्शन इसमें बन गए। तो ओवरऑल दिस इनटू दिस इतने आपके पास जो है डायमेंशंस आ गए। अब ये हो गया, अब इतने पेज के बाद अब यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन लिखना शुरू करो, यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखो, है ना। सो व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल वर गेटिंग मार्क्स, 3-4 साल पहले तक people were getting marks, but now as I was talking to many of you, ठीक है, and I'm talking to so many of the students who have got selected also, talk to them, they have followed this approach। so UPSC ने बोला ठीक है सभी ये कर रहे हैं तो चलो 90 to 100 110 that is the average, ठीक है। और जो इसमें अलग लिख दे रहा है उसको नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज
एक तो दिमाग से ना अपना जो है ये एक और चीज निकाल दो कि एक ही तरीका है लिखने का, बहुत डायमेंशंस लिख देंगे तो आ जाएगा। आज के टाइम पे आप देखो रशिया यूक्रेन, अभी रिसेंट अटैक ऑफ यूक्रेन जो है रशिया पे उसने किया है ना, आज के अखबार में भी काफी आया है उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखोगे कैसे वॉरफेयर इज चेंजिंग, है ना, वॉरफेयर आज भी आया, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, वॉरफेयर सिस्टम्स आपका जो है पूरा जियोमेट्रिक्स ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग नाउ, ठीक है। नाउ यू विल सी इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 days or over a period of months time, you will see lot of articles would be coming on this. Some will be only talking about warfare technology, some would be talking about इसको डिप्लोमेसी से लिंक करके, some would be talking about आपका जो है वॉरफेयर कंपेयरिंग इट विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक का, ठीक है। और सारा इंटरेस्टिंग लगता है आपको, एक डायमेंशन में भी किसी ने इन डेप्थ लिखा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डायमेंशन है तभी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट, डोंट गो विद दिस नोशन दैट यू हैव टू राइट मतलब मैकेनिकली 18, 15, है ना, 20 काइंड ऑफ अलग अलग डायमेंशंस। यू कैन राइट ओनली फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, उसके अंदर सब डायमेंशन चले जाओ, उसके अंदर यू कैन गो इनटू द डेप्थ। आई एम नॉट सेइंग कि मल्टीपल डायमेंशंस नहीं लिखना है, यू कैन राइट, है ना, इफ यू आर कंफर्टेबल यू राइट, बट इफ यू वांट टू गेट मोर देन दैट, बिकॉज जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हो आज के टाइम पे, most of them have done this and most of them are getting average marks. तो हमें अगर ये बैरियर ब्रेक करना है तो we have to look for something else also, है ना। So don't go with any preconceived notion कि नहीं ऐसा ही करना है ना, बस ऐसा ही करना है और ऐसे ही नंबर आते हैं। आप अच्छा लिखो, एक डायमेंशन में ही आप इन डेप्थ लिख लो, नंबर आ रहे हैं, मल्टीपल में भी अच्छे से लिखो, नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड योर वे ऑफ राइटिंग, है ना। यू कैन ऑब्जर्व द राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट टॉपर्स ऑल्सो, है ना, आप डिफरेंट एडिटोरियल्स को पढ़ो, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं लोग, है ना, टॉपर्स की कॉपीज को देखो, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। बट डोंट गो बाय दिस कि हाँ ये करने से इतने नंबर मुझे आए तो मुझे भी आ जाएंगे, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, because at the end of the day it is your personality test and now the question pattern is also changing. Had it been खाली relevance of NAM तो हो सकता है वो तरीका फिट बैठ जाता क्योंकि it was more of your facts, है ना। सो अब तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, ये माइंडसेट मैंने बोला फ्रेश स्लेट की तरह, यू हैव टू स्टार्ट विद अ फ्रेश स्लेट नाउ, ठीक है। तो दोज हु आर वेटरन्स और दोज हु आर रिपीटिंग दिस, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जो नए लोग हैं वो भी सिर्फ इसमें नहीं चले जाओ कि ये अप्रोच अपना लेने से नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं है। हर अप्रोच को देखो और अपना तरीका ढूंढो, दैट इज व्हाट लाइक फोकस ऑफ आवर प्रोग्राम इज ऑल्सो, है ना, कि ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो ऐसा आएगा। एंड आई डू नॉट गारंटी यू कि भैया ये कर लेंगे तो आपको मिनिमम इतने नंबर आ जाएंगे, नो, आई नेवर गारंटी दिस, बट यस इफ वी डू इट, ठीक है, तो एटलीस्ट डिसेंट ऐसे वी आर एबल टू राइट, ठीक है, डिसेंट ऐसे लिख के आएंगे, है ना। और नंबर क्या होंगे क्या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट कि यूपीएससी के एग्जाम में होता है क्या। सपोजिटली यू आर गोइंग टू राइट योर एसे पेपर, फर्स्ट थिंग इज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, यू आर गेटिंग 8 टॉपिक्स, है ना। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू चूज अ टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ पे कई बार गलती होती है ना, यहाँ पे कई बार गलती होती है, यहीं से आपका कई बार गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। हाउ टू चूज अ टॉपिक, now how to choose a topic, there are 2 3 4 parameters which are generally adopted by people say ये तो मेरी ऑप्शनल से नजदीक है, this topic is very close to my optional, ठीक है। आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स और GS3 भी मेरा बहुत अच्छा है, तो फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, चलो हम इसको कर लेते हैं। तो वन थिंग इज वेयर यू फील दैट द सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई ऑप्शनल, और दिस इज लाइक आई एम वेरी गुड इन सो एंड सो सब्जेक्ट एंड दिस इज रिलेटेड टू दैट, तो एक तो ये क्राइटेरिया होता है चूज करने का। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, अरे ये तो बड़ा कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन, सब लिखेंगे, अब मैं भी वही लिख दूंगा तो फिर मतलब, क्योंकि मोर और लेस व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कंटेंट इज सिमिलर, है ना। हाउ डू यू गेट द कंटेंट, यू गेट द कंटेंट थ्रू योर GS,
You get the content through your current affairs, है ना, that is what general, सब लोग एक ही सिलेबस है तो सिमिलर पढ़ रहे हैं, सिमिलर बुक्स हैं, सो मोर और लेस द कंटेंट इज वेरी सिमिलर, है ना. सो वी थिंक दैट कि यार ये इसने ये तो ये भी यही लिखेगा, ये भी ये लिखेगा, तो मैं कुछ अलग लिखता हूँ, ठीक है. सो वहां पे गड़बड़ कई बार हो जाती है अलग लिखने के चक्कर में. इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू राइट अ टॉपिक विच नोबडी एल्स इज राइटिंग. पीपल आर राइटिंग कॉमन टॉपिक्स एंड उन्हीं कॉमन में से कई बार आपको मैक्सिमम स्कोर करने वाला ऐसे का स्टूडेंट होता है, ठीक है. तो ऐसा ये भी एक क्राइटेरिया है. आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्राइटेरिया कि अलग करना है. अलग करना है तो उसके लिए फिर यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग विद यू, ठीक है. तो ये गड़बड़ हो जाती है हमारे को. एक तो ऑप्शनल से मिलता जुलता है इसलिए ले लो, या फिर कॉमन है तो इसको मत लो. दैट इज व्हाट है ना. कॉमन ही तो क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं, लिख रहे हो ना, एक नंबर तो नहीं आ रहे हैं सबको, किसी की सिलेक्शन नहीं हो रही और किसी को नंबर आ रहे हैं और रैंक आ रहा है. तो इसलिए कॉमन क्राइटेरिया का भी फिल्टर आउट कर जो है दिस, आई डोंट लाइक दिस फिल्टर ऑल्सो, बट इट इज अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है, बट यू थिंक अपॉन इट कि क्या ये सही तरीका है ऑप्शनल. सी, द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन पेपर, है ना, दिस इज अ पेपर वेयर यू आर गेटिंग आपका जो है 3 hours एंड यू हैव टू राइट 2400 वर्ड्स, है ना, 1200 ईच, 1200 लिखना है आपको, ठीक है. तो यू हैव एनफ टाइम ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है. सो व्हाट यू कुड डू इज यू इन्वेस्ट 10 to 15 minutes इन एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, है ना. 10 से 15 मिनट यहाँ लगाना इज वर्थ रादर देन फटाफट एक ही एकदम एकदम से जो है ना, एकदम इंट्यूशन इंट्यूशन विजनरी डिसीजन मेकिंग इज अ इंटरसेक्शन ऑफ लॉजिक एंड इंट्यूशन. तो इंट्यूशन से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा और लॉजिक से भी नहीं चलेगा. रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक है. तो आपको रियल और रैशनल दोनों के बीच का जो है वो वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है एकदम से मतलब देख लिया, हाँ हाँ ये कर लिया, ठीक है, आता भी है, ठीक है, पहली नजर में ही आपने देख लिया कि आई विल बी राइटिंग ऑन an environment वाला टॉपिक, बट स्टिल यू सी ऑल द 8 क्वेश्चंस, ठीक है. 8 क्वेश्चन को देखो और सबको जो है अंग्रेजी में, हिंदी में, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो, रीड इट इन बोथ द लैंग्वेजेस सो दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि इफ द क्वेश्चन इज ऑन एनवायरमेंट, बट इज इट डायरेक्टली ऑन पेरिस क्लाइमेट डील और इज इट टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है. सो आप उसको पहले ध्यान से देखो, देन यू सी what all content I have, do I have any kind of data, if the topic is, some of the topics are data हैवी टॉपिक्स ऑल्सो. मान लो कोई आपको साइंस का टॉपिक है, कोई स्पेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो स्पेस को आप बिल्कुल जनरल करके भी नहीं लिख सकते हो, है ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक स्पेस डिप्लोमेसी में आ गया तो यू हैव टू थ्रो सम नेम्स ऑल्सो. आपकी कुछ सैटेलाइट्स हैं, आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम्स आप किसी और कंट्री में भी कर रहे हो, तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ फैक्ट्स. सो यू हैव टू सी द टॉपिक दैट आई हैव चोजन, डज इट नीड लॉट ऑफ फैक्ट्स, and if it needs fact, do I have fact, ठीक है, do I have something to substantiate what I would be saying, ठीक है, इसके बारे में मैं कितना डीप सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ठीक है. तो दैट शुड बी द क्राइटेरिया. आप चारों पांचों एक एक सेक्शन के 4-8 टॉपिक पे थोड़ा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हल्का हल्का करो एंड देन यू जीरो डाउन ऑन द टॉपिक. डोंट जस्ट गो बाय द इंट्यूशन, ठीक है. कई लोग कहते हैं मेरी इंट्यूशन बहुत काम करती है ना, मेरी भी करती है, बट डज वहां पे आपका जो है एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समटाइम्स इट इज नॉट योर डे, है ना. कहीं उस दिन कई बार इंट्यूशन फेल हो गई, है ना, समटाइम्स इट हैपेंस. तो इसीलिए लॉजिकल तरीके से एज अ वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन मेकर, लॉजिक और इंट्यूशन का प्रॉपर आप यूज करो वहां पे, ठीक है. देन यू सेलेक्ट द टॉपिक, ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. टॉपिक चूज कर लिया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है. अब ब्रेनस्टॉर्म करना है, यहाँ पे भी देर आर लाइक सम पीपल व्हाट दे डू इज दे ब्रेनस्टॉर्म द फर्स्ट टॉपिक, दे राइट इट, देन दे ब्रेनस्टॉर्म द सेकेंड टॉपिक एंड दे राइट इट. Then there are people who do the brainstorming of both the topics simultaneously,
ठीक है, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, अलग अलग लिख लिया, और फिर उसके बाद आप ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, है ना, ये काफी इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, क्योंकि कई बार होता है लोग बोलते हैं कि एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, फिर पूरा लिख लिया, फिर आपको थोड़ा सा लेथार्जी आ जाता है, दूसरे के ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दिमाग में फ्रेशनेस नहीं होती है। कोई बोलता है कि दोनों साथ कर लेने से क्या होता है कि पॉइंट्स काफी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज अप टू यू, यू प्रैक्टिस इट, साथ करके भी शुरू में देखो और एक एक बार अलग करके भी देखो, व्हाट whichever way works for you, you go for it, but you do the brainstorming ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे सिंपल सी चीज है, व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम अपने दिमाग में ये फिट नहीं करना यार मुझे तो पेस्टल अप्रोच, अच्छा पॉलिटिक्स से इसमें क्या पॉइंट आएगा, सोशल से क्या पॉइंट आएगा, व्हाट, फॉरगेट इट, फॉरगेट एनीथिंग, ब्रेनस्टॉर्म विदाउट एनी आपका जो है प्री कंसीव्ड नोशंस, ब्रेनस्टॉर्म इट लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे की तरह जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको एक टॉपिक बता दो, जो भी उस पे सोच के जो भी बोल सकता है, हो सकता है when you are brainstorming some of the points, you yourself might find it very silly, but you write it, don't stop your brain, because the moment you come into a particular एक आप एक particular जो है पैटर्न से ब्रेनस्टॉर्म करते हो ना, तो वहीं पे वो रेपिटेशन आ जाती सबकी कॉपीज में। ठीक है, सो यू ब्रेनस्टॉर्म विद अ ओपन माइंड। ठीक है, डोंट थिंक, अब जैसे पॉवर्टी है मान लो, ठीक है, पॉवर्टी है, ठीक है, अब अगर एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इफ आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉवर्टी, व्हाट आई विल डू इज, पॉवर्टी में हिस्ट्री में क्या था, ठीक है, चलो जी हिस्ट्री हो गया, है ना, पॉवर्टी ज्योग्राफी से कोई लिंक है, चलो वो 3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, पॉवर्टी का कोई सोसाइटी से लिंक है, उसका 2-4 पॉइंट डाल देंगे, है ना, तो दैट इज व्हाट आपका प्री कंसीव नोशन है ना, पॉवर्टी। तो आपके आंसर में भी पॉवर्टी 1 2 3 4 ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, थिंक इट कि पॉवर्टी, पॉवर्टी है क्यों, कहाँ कहाँ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में ढूंढ रहे, पॉवर्टी है क्यों, है ना, पॉवर्टी को डिफाइन किसने किया, किसने पॉवर्टी को, क्या क्या नेचर ने पॉवर्टी बनाई है, हु हैज मेड दिस पॉवर्टी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी आया कहाँ से, ठीक है ना, तो दैट इज समथिंग इज कि अगर जो द पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड द जीएस सब्जेक्ट्स, है ना, तो उसको आप बोलोगे वो एक अलग तरीके से सोचेगा, है ना, सो दैट इज व्हाट की पॉवर्टी है क्या भैया, आई कहां से, क्या कुदरत में थी, वॉज इट देयर इन द नेचर, नहीं थी तो ये क्यों आ गई, है ना, क्यों आ गई, तो अब ये आ गई तो ये कहां कहां हमने फैला दी पॉवर्टी, देन यू टॉक अबाउट इट रादर देन डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट कि ये ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, है ना, यू शुड थिंक विद अ फ्री माइंड, डोंट थिंक कि भैया पेस्टल अप्रोच है, ये अप्रोच है, वो अप्रोच है, उसको उसी के अराउंड यू हैव, ब्रेनस्टॉर्म मींस फ्री माइंड, व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड, इवन द सिलिएस्ट ऑफ द थॉट, राइट इट। अदरवाइज अगर आप वहीं पे इसको इसको अगर आप सेग्रीगेट करते हो कि ये लॉजिकल थॉट है, इलॉजिकल थॉट है, आपका ब्रेन जिस डायमेंशन में फ्लो में सोच रहा होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो लेट एवरी सिंगल थॉट कम टू योर माइंड, राइट इट डाउन एंड देन यू थिंक कि इसमें क्या कट करना है और इसमें क्या नहीं करना है। Sometimes what happens is when you are thinking over something, so 50-60 points come to your mind, so do we have to write all of them? No. ठीक है, here comes another trait of your personality, prioritization, कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अराउंड, है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है व्हाट यू कुड डू इज, आप जो है पहले ब्रेनस्टॉर्म करो सारा, एंड अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट इज लाइक यू आर लाइक प्रिपेयरिंग, बंच ऑफ फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग टुगेदर, आप साथ मिलके करते हो, ठीक है, इफ यू हैव समबडी हु इज नॉट एट ऑल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है, समवन हु इज नॉट एट ऑल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप उसको भी ये टॉपिक दो, दैट विल गिव यू समथिंग डिफरेंट, है ना, यूपीएससी वाले का घूम फिर के एक ही तरीका हो जाता है ना, सो व्हाट यू कुड डू इज यू कैन डिस्कस इश्यूज और यू कैन
घर में ही बोल दो, अपने मम्मी से ही पूछ लो, भले उन्होंने यूपीएससी का कुछ भी नहीं तैयारी की हो, ठीक है, शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट ट्राई टू गेट हर आइडियाज, है ना. सो दैट इज ऑल्सो brainstorming. And when you are brainstorming, you can you can think of anything you have observed in your childhood, anything you have observed in the recent time. आप सब कुछ लाओ, सिर्फ आप जीएस सिलेबस के अराउंड मत घूमो, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट विल ब्रिंग सम डिफरेंस और न्यूनेस और फ्रेशनेस टू योर एसेज. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आजकल कई लोग बोलते हैं हमारे तो 5 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, दोनों का हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि एक वो टेक्निकल तरीका बना लिया है, ठीक है. तो उसमें थोड़ा सा जो है और भी चीजें देखो, बियॉन्ड योर जीएस सिलेबस ऑल्सो ट्राई टू थिंक, है ना, ये है क्या, ठीक है. सो यू कैन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है. फिर वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग, है ना. आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर देखा, you have selected the topics, then you have brainstormed upon that topic, है ना. brainstorm करना है तो आप उसके अलग अलग एस्पेक्ट, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट से देखो, एंड कैसे कैसे अलग अलग चीजें दैट वी आर रीडिंग, हाउ वी कैन लिंक विद दिस, वी विल बी डूइंग इन द क्लासेस, ठीक है. इसको हम क्लासेस में करेंगे, कैसे हम चीज़ों को अलग अलग एस्पेक्ट से जोड़ सकते हैं. जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वट एवर आई एम स्टडिंग इन पेपर 3, हाउ अ फुल essay can be related to your paper 3 only, how a full essay can be related to some of the concepts that you are reading in paper 2 only, ठीक है. आपको दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है, उसी से आप कर सकते हो, ठीक है. तो we will be doing it in the subsequent classes and the brainstorming that we will be doing, ठीक है. So आपको brainstorming करना है, and then you have to start writing. And at the time of brainstorming also you can think कि how are you going to start the introduction, है ना, वो भी आप उसी टाइम सोच लो. because what happens is sometimes you start writing the introduction, 4 लाइन लिखा, काट दिया, है ना, ये मजा नहीं आ रहा फिर. सो पहले ही वो कटा फटा. प्रेजेंटेशन डज मैटर, है ना, प्रेजेंटेशन डज मैटर अ लॉट. सो पहले ही आप सोच लो कि इसको ऐसे थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है. सम पीपल से दैट वी हैव प्रिपेयर्ड सम ऑफ द इंट्रोडक्शंस, है ना. कई सारे टॉपर्स बोलते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास लॉट ऑफ असिस्टेंस इज देयर थ्रू योर एआई, ठीक है. तो पीपल आर प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स एंड इंट्रोडक्शंस टू दोज टॉपिक्स. बट ठीक है, आप करना चाहो आप कर लो, बट है ना, बहुत ज्यादा रट रटा के मत जाओ, ठीक है. थीम या आप एक आइडिया समझ लो. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव मग्ड अप समथिंग, सपोजिटली आपने 5 लाइन का टॉपिक विमेन के ऊपर रट लिया इंट्रोडक्शन, एग्जाम में अगर उसमें से एक लाइन भी भूलती है ना, तो आपका टाइम उसमें जाता है. यार वो कैसे भूल गई, इतनी मेहनत से तो मैंने सबसे अलग ढूंढ के निकाला था, इतना तो मैंने इसको रटा था. अब ये एक लाइन फंस जाती है, वो एक लाइन के पीछे ना घूम घूम के आपका दिमाग वहीं जा रहा होता है, ठीक है. सो try to understand the things rather than mug up the things. In the classes also, those who are our students, हम क्लास में यही मतलब, don't try to mug up, try to understand the things, ठीक है. आप देख लो कि हाँ ये एनेक्डोट इस टाइप से मैं बना लूंगा, बट लाइन टू लाइन वर्बैटम आई वुड नॉट सजेस्ट. रेस्ट इट इज अप टू यू, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको जो करना है, ठीक है. देन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर, है ना, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर एसे, है ना. यू बिगिन विद इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन, है ना. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, है ना. देखो, इंट्रोडक्शन इज समथिंग लाइक say for example, examiner is checking 15 copies, or examiner is given 15, he is going to a bookstore where he is getting 15 books, ठीक है. अब उनको इन 15 बुक में से कोई एक बुक लेनी है, एग्जामिनर क्या करेगा, उसका प्रीफेस देखेगा, है ना, कि कौन सी इंटरेस्टिंग है. आप ही मान लो वो एग्जामिनर एज अ पर्सन इज गोइंग टू बाय टू अ बुक स्टोर टू बाय अ बुक, एंड ही इज गेटिंग 15-16 बुक्स देयर. तो व्हाट विल ही डू, विल ही सिट एंड रीड द 16 बुक्स, नॉट पॉसिबल. व्हाट विल ही डू, और एनीवन, इफ आई गो, इफ यू गो, प्रीफेस पढ़ोगे उसका, है ना, एक आइडिया लगेगा, है ना. अच्छा, आज कौन सी मूवी लगी है थिएटर में, ठीक है, ये लगी है, कौन सी देखे, फटाफट ट्रेलर देख लो, इसका ट्रेलर अच्छा लग रहा है, वहां चल पड़ेंगे. टाइम है आज मूवी देखनी, अब देखनी कौन सी पता नहीं है, कौन कौन सी लगी हुई है आसपास में, सबका ट्रेलर देख लो, 2 मिनट में आपको ट्रेलर दिख जाता है, ये ठीक है यार, यहाँ चल पड़ो. सो दैट इज व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, है ना. समथिंग व्हेन यू वॉच अ मूवीज ट्रेलर दैट कैचेस योर आई,
है ना. when you read the preface of the book, that keeps you hooked to the book. यार आगे क्या आएगा, दैट इज व्हाट इज, जो कहते हैं ना, आपका जो इंट्रोडक्शन शुड बी समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, है ना. इंटरेस्टिंग डज नॉट मीन कि इट शुड बी लेडन with lot of heavy words or lot of jargons or no, है ना. Interesting simple definitions are also, or sorry, introductions are also there. You have your NCRTs, especially of humanities, where they introduce concepts to you, जहाँ सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ला रहे हैं. यू रीड योर पॉलिटी की एनसीईआरटीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्टैंडर्ड 6, 7, 8, कितना इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन होता है. व्हेन दे टॉक अबाउट यूनिवर्स, कितना इंटरेस्टिंगली लिखते हैं, है ना. चाहे वो आप साइंस के बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो, आपको समझ में आता है. आप ह्यूमैनिटीज से हो चाहे नहीं हो, आपको समझ में आता है. तो दैट इज व्हाट, है ना. इंट्रोडक्शन शुड बी समथिंग विच शुड कैच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है. It should catch the attention of the examiner. It should be something which is, in a nutshell, giving you the crux of the essay. है ना. Preface of the book is giving you the crux of the book. So it should give you the crux. उसको पढ़ के ही एग्जामिनर को समझ में आए कि भैया मुझे यहाँ पे ये चीजें दिखेंगी, है ना, और इन एस्पेक्ट्स पे ये बात करेगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज नाउ. पर एक भूमिका बांधनी होती है ना. उस भूमिका को बांधने का यू हैव टू बिल्ड अ काइंड ऑफ अ लाइक बैकग्राउंड फॉर दिस. भूमिका बनानी है. ठीक है. सो वो भूमिका बनाने का तरीका इज डिफरेंट. सम पीपल डू इट विद एनेक्डोट, some people do it with simply asking questions, some people do it with just with a simple definition, है ना. अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक को किया जा सकता है. ठीक है. टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज ट्राइंग टू डू दिस, कि आज व्हाट आई विल डू इज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे कैसे आप इंट्रोडक्शन को कर सकते हो. ठीक है. सो आई जस्ट रीड इट आउट. सम एक ही टॉपिक है जो यूपीएससी का ही मान लो टॉपिक है, ये आपका मान लो नहीं, मतलब यूपीएससी का टॉपिक है. इसको अलग अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं. सम पीपल से वी स्टार्ट विद कोट, है ना. कोट दिया है, कोट को कोट से ही आगे इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है ना. होता है ना, कईयों को कोट्स एंड इडियम्स बहुत अच्छे आते हैं. लाइक अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट्स नॉट शिप इज मेंट फॉर. अ वेरी easy topic to understand, है ना. तो that's why मैंने सोचा इसी से लिखते हैं. ठीक है. A ship in the harbor is safe but that's not what ship is meant for. ठीक है. अब इसको different तरीके से how can we introduce. Supposedly you are very good at quotes. ठीक है. आपको बहुत सारे quotes आते हैं. तो ये जो शिप इन द हार्बर इज सेफ, दिस इज नॉट व्हाट शिप इज मेंट फॉर. बेसिकली द फिलॉसफी इज अबाउट रिस्क टेकिंग. द फिलॉसफी इज अबाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस इन लाइफ, है ना. वही है. तो चलो मैंने सोचा मैं कोट से इसको इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो टेकिंग रिस्क इज द बेस्ट थिंग एवर एंड दैट्स व्हाट गेट्स यू एनीवेयर. दिस इज अगेन अ कोट, किसी और का कोट है. ठीक है. यहाँ से आई हैव स्टार्टेड. ठीक है. टेकिंग रिस्क इज द बेस्ट थिंग एवर एंड दैट्स व्हाट गेट्स यू एनीवेयर. इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, predictability, security, guarantee at every step of life, be it in educational field, be it in professional field or in personal matters. But those who have shown courage and have ventured out in different dimensions in life rule the world. ठीक है. This essay explores why risk taking is important, why often we are not ready for it as an individual, as a society, as a nation. So examiner gets to know कि भैया risk taking की हम बात कर रहे हैं, different fields of life की हम बात करेंगे, and we are also going to talk about कि why we are not ready to take risk as a society, as a individual and as a nation. हम इस level पे भी बात करेंगे इस essay में. तो it was a quote. I started with the quote. ठीक है. अगर आपको कोट आता है आप कोट से स्टार्ट करो. देन कोई स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी और सम करंट इवेंट. सो अभी आप सबने देखा मई 2025 INS तारिणी, 2 लेडी कमांडर्स, है ना. फर्स्ट टाइम दे हैव सर्कमनेविगेटेड द ग्लोब. ठीक है. इंडिया की. ठीक है. तो मैंने सोचा उससे कर लेते हैं. शिप है, हार्बर है, ये 2 लड़कियां, दे 2 कमांडर्स ऑफ इंडियन नेवी, दे हैव सेल्ड. सो आई थॉट इससे भी हम कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज लाइक व्हाट आई हैव रिटन इज लेफ्टिनेंट कमांडर्स दिलना के एंड रूपा, who circumnavigated the globe for 7 months in INS Tarini.
came back at Goa on 29th May 2025. They were received by Defense Minister Mr. Rajnath Singh. They are the first women from India to achieve this feat, and what makes this story more remarkable is that neither came from a traditional sailing background. That's a fact. ये दोनों लड़कियों को जो है सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, 2-2 साल पहले दे हैव टेकन इट एज अ स्पोर्ट. ठीक है. They moved out of their comfort zones to a journey full of challenges and grit and returned back with lot of experience and combination. Confidence. ठीक है, तो यहाँ से then you can talk about, है ना. So this is ship in the harbor is safe, but this is not ship is meant to be. They would have been safe. नहीं करती सेल, बट सेल किया तो उन्होंने दुनिया भी देखी, कॉन्फिडेंस भी आया, और इंडिया का नेवल उसमें भी एक नया आपको जो है दे हैव अचीव न्यू हाइट्स आल्सो. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट. उसी तरह आप मान लो, इफ यू वांट, यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स, you want to start this essay from your GS perspective. ठीक है. India faced severe BOP crisis in 1991. India only had few weeks worth of forex reserves left. Inflation was rising, BOP was collapsing. Had India looked to the safe path, then we would have continued with controlled and protectionist economy. But instead, India chose the difficult route, LPG. The reforms were risky, but we circumnavigated the challenges, and today we stand as the 4th largest economy in the world. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. उसी तरह इसी को अगर आप इंटेरोगेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. What is ship meant for? Why are there harbors? If ships are there in the harbor, had ships been in the harbor, then would Vasco da Gama have found a way to India? Or would we have discovered a country like Australia? ठीक है ना. Would the world have seen Buddhism spread across? कहाँ सेलर्स के थ्रू ही तो गया बुद्धिज्म. ठीक है. तो दैट इज क्वेश्चन पूछ के. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, है ना. जो कहते हैं ना कि जो भी वट एवर आई एम रीडिंग, हैव आई डन समथिंग रॉकेट साइंस? नो. वेरी सिंपल डेफिनेशन जो आप मुझसे अच्छा कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, है ना. व्हेन पीपल से दैट योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी 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 लाइक different or very interesting, very unique. See, it's not about discovering something. It's not about कि आप आइंस्टाइन हो, है ना, कि वो आपको एक मोमेंट आने वाला है कि नहीं भैया हमने तो कुछ अलग ही चीज डिस्कवर कर दी है. क्योंकि सबका, those who are preparing more or less consciously, subconsciously, we are around the similar content. ठीक है. तो your introduction should be something which should be interesting. There is no one way of writing introduction. I have also talked about like 3-4 ways of introducing same topic, different ways. आप देखो आप किसमें अच्छा कर सकते हो. ठीक है. और कुछ भी नहीं समझ में आता है, ये इडियम क्या बोलता है, आप वहीं से उसको डिफाइन करके यू कैन इंट्रोड्यूस. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू glue the attention of the examiner, to hook the attention of the examiner, which you can do in a simple is also attractive, है ना. सिंप्लिसिटी के ऊपर जो है इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. यूपीएससी ने बोला है सिंपल इज ब्यूटीफुल. ठीक है. वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जार्गन्स और बहुत वो करना. सिंपल तरीके से यू इंट्रोड्यूस. बट यस, अ गुड एसे हैज अ गुड इंट्रोडक्शन मीन्स द इंट्रोडक्शन is telling you about what is there in the essay. It is about the trailer of the movie which is telling you कि ये चीजें आप देखोगे. It is telling in a nutshell only, 4-5 lines में ही it is giving you you are telling the examiner that you have understood what does it mean. When you are talking about INS Tarini, when you are talking about these two commanders, you are talking about that they have moved out of their secure and safe zones. This is what the essay is. ये 2 लाइन से ही समझ में जाएगा कि एग्जामिनर कि आपको समझ में आ गया है ये ऐसे क्या बोला. सो दैट इज व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन. क्या डिफिकल्ट है, क्यों घबरा रहे हैं? नथिंग इज डिफिकल्ट. ठीक है. देन इट कम्स टू द बॉडी ऑफ द एसे, है ना. अब ये जो बॉडी होती है ना. अब नाउ पीपल से लाइक से फॉर एग्जांपल इट इज 1200 वर्ड्स का एसे. 1200, if you want, you write it 1200. You can
sum up with 950 to 1000 words also. It's not a compulsion. Maximum is 1200 है ना. आप 1200 लिखना चाहो 1200 लिख लो, 14 मत करना, नंबर कटेंगे. ठीक है, 1200 है, that is maximum. So 1200, 1100, 1000, 900, 950, but not less than that. ठीक है, तो ये this is the average you can write a good essay with these number of words. Now supposedly if it is a essay of say 1000 words, मैथ्स का कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना. सो इट इज ऑफ 1000 words. सो हाउ मच शुड बी योर इंट्रोडक्शन, है ना. इट शुड बी समवेयर अराउंड 10 to 15%, मैक्सिमम 15%, है ना. इट शुड बी समवेयर अराउंड 100-120 words. ठीक, क्योंकि अगर आप इससे बड़ा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इतनी मोटी किताब का प्रीफेस इज दिस 8 पेज, है ना. अगर वो प्रीफेस ही 4 पेज होगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं और खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए 4 पेज के लिए यू हैव टू सिट इन द शॉप. समझ में आ रहा है ना. तो प्रीफेस कितना छोटा होता है. अगर आप 3 घंटे की मूवी का ट्रेलर 1 घंटा, आप बोलेगा 1 घंटा कौन बर्बाद करेगा, छोड़ो इसको. सो दैट इज व्हाट इवन योर एसे, इफ यू आर राइटिंग एन एसे, डोंट राइट वेरी बिग इंट्रोडक्शंस. इंट्रोडक्शन शुड बी वो नहीं, कंसाइजली. इट शुड बी वेरी कंसाइज, पिन पॉइंटेड. जितना पिन पॉइंटेड है उतना टारगेटेड आपका जो है ऐसे का जो आपका इंट्रोडक्शन का जो पर्पस है, दैट शुड बी सर्व्ड. बिकॉज व्हेन यू मेक इट लेंदी, unnecessarily lengthy, then you try to add so many things जिसका कोई मतलब ही नहीं है, and it dilutes the importance of your introduction. ठीक है. So ideally it should be somewhere around 100 to 120. थोड़ा सा कोई ज्यादा लिख रहा है 150 वर्ड, उससे ज्यादा नहीं, otherwise you are defeating the purpose. ठीक है. Now people say एक पेज में आपका ऐसे का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए. ठीक है. Point is everyone cannot do that. It all depends on your font size, है ना. So the golden rule is 10 to 15%, 100, 125 वर्ड और 120 वर्ड्स और मैक्सिमम 150 वर्ड्स. अब ये जो है आपका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, मीडियम है, यू सी हाउ मेनी पेजेस यू आर टेकिंग, है ना. डोंट गो बाय इस पेज में इतना, इस पेज में इतना. ठीक है, इतना आपका हो जाना चाहिए. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट योर बॉडी, है ना. बॉडी शुड टॉक अबाउट द इन डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यही टॉपिक लिया, ठीक है ना. अब इसमें जो है आपका अ शिप इन द हार्बर इज सेफ, बट दिस इज नॉट व्हाट शिप इज मेंट टू बी. नाउ क्वेश्चन कुड बी aspects you can talk about ki why there is a kind of a complacency in human nature, why we are not ready to take the risk. And I'm not saying this should be your paragraph 1, I'm just saying ki alag alag components hai, you arrange it according to your way of writing. ठीक है. So you can delve into this kind of aspect, है ना, कि why there is complacency, why people are not ready to take the risk, what is the relationship between risk taking and future. ठीक है. एक एस्पेक्ट आप इस पे बात कर सकते हो. आप इसमें आप चाहो हिस्ट्री से इसमें एग्जांपल डालो, पॉलिटी से डालो, इकोनॉमी से डालो. ठीक है. सो व्हाई सम पीपल आर रिस्क टेकर्स, दोज हु हैव टेकन रिस्क, व्हाट हैज हैपेंड टू देम, यू गिव द एग्जांपल. जिन्होंने लाइफ में रिस्क उठाया उन्होंने क्या किया. इंडिया ने भी जो है व्हाट वी हैव डन सो मेनी टाइम्स एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, द सोसाइटीज विच हैव टेकन रिस्क, है ना. रिस्क इज समथिंग व्हाट वेयर यू आर, जो ट्रेडिशनल तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे. जिन सोसाइटीज ने एक पेट्रियार्कल माइंडसेट में प्रोग्रेसिव होने का रिस्क दिखाया, वो सोसाइटीज कहाँ पे है. ठीक है. यू कैन थिंक फ्रॉम वेरियस एंगल रादर देन जस्ट थिंकिंग की हिस्ट्री पॉलिटी. यू थिंक अबाउट एस्पेक्ट्स एंड इन दोज एस्पेक्ट्स यू फिल एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, व्हाटएवर, वहां पे आप इसको डालो. ठीक है. रादर देन very mechanical. ठीक है. So you can think, है ना, risk taking, those who have taken risk, what has happened, those who have not taken risk, what has like why like what has happened to them, है ना. जिसने रिस्क लिया हम कहाँ पहुंचे एज अ नेशन, हमने रिस्क उठाया तो हम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर भी कर रहे हैं. जिसने रिस्क ही नहीं उठाया वो सिर्फ ड्रीम ही कर रहा है, ड्रीमर ही रह जा रहा है कि शायद हम भी कभी डीसी होते कहीं के. ठीक है. मतलब थिंक अनयूजुअली ऑल्सो, है ना. आप अलग अलग रिस्क टेकिंग के बारे में बात करो. ठीक है. देन व्हाई द रिस्क टेकिंग एबिलिटी,
is lacking in us? Where is the problem? Is it something the problem is in our upbringing? है ना, ये आप ऑब्जर्व करो बचपन से ही हमें आज के टाइम पे तो रिस्क, जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो है, बच्चा चलता है, रोता है, गिरता है, अब हमने सब कुछ उसके साथ एक सेंसर लगा दिया है, वो टैं करेगा नहीं, आप खाना दे दोगे उसको, है ना। तो आपने जो है वो रिस्क जो आपका जो है राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, है ना, द वे वी आर बीइंग ब्रॉट अप, है ना, हाउ मेनी ऑफ अस आर अलाउड टू टेक रिस्क? पहले बच्चों को हम बोल जाओ खेलो, है ना, जाओ बाहर खेलो, अब नो, यू हैव टू गो विद समबडी, यू कैन नॉट गो अलोन, वी यू डू नॉट लेट अस अ स्मॉल चाइल्ड टू क्रॉस द रोड, वो अपना रिस्क लेके, अपना एनालिसिस, अपना 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 डिसीजन मेकिंग नहीं, हाथ पकड़ के ही आपको मेरा चलना है। इवन व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप, है ना, 10th के बाद साइंस रखना है या आर्ट्स रखना है, वी डोंट लेट द चिल्ड्रन डू दैट जनरली, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं हर, बट स्टिल इट इज पेरेंट्स हु डिसाइड इन इंडिया, अगर आप हमारी बात करो, ठीक है। तो व्हाई दिस, एंड देन किसी को टुडे इफ यू आर सेइंग कि भैया मैं तो बिजनेस करूंगा, आपके पेरेंट्स बोले कहाँ से आएगा पैसा, तुम्हारा आइडिया कौन खरीदेगा, ठीक है, कौन सा इतने सारे लोग कर रहे, तुम्हारा ही क्यों चल जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आवर माइंडसेट, है ना, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, बट यू कंपेयर इट विद सोसाइटीज वेयर यू हैव लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, you talk about Scandinavian countries, है ना, where there are a lot of startups, because that is what risk taking capabilities from the beginning. तो अब यहाँ पे you are observing and writing, है ना, तो why risk taking is lacking, तो आपका एक societal, आपका society भी आपको risk नहीं लेने देती है ना, आपकी आपकी फैमिली पहले नहीं दे रही है, आपके सोसाइटल बैकग्राउंड, आपकी कंट्री कई बार आपको रिस्क नहीं लेने दे रही है, यू डोंट हैव लॉज विच सपोर्ट योर स्टार्टअप्स। आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भैया, या कहीं जहां पे भी यू हैव वेरी गुड स्टार्टअप कल्चर, कि कुछ भी होगा सरकार हमें आके सपोर्ट करेगी, यहाँ पे यू नो इट्स नॉट हैपनिंग, तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम वेरियस डायमेंशन, दैट इज व्हाट इज योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो यू थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट कि व्हाई रिस्क टेकिंग कल्चर इज लैकिंग, हाउ इट कैन बी इनकलकेटेड, ठीक है, तो वो आपका कंक्लूजन में आ सकता है, ठीक है, यू कैन सजेस्ट, है, तो दैट इज व्हाट इज, है ना, यू हैव टू बिगिन, देन you have to talk about different aspects when you are brainstorming, what is risk taking, what is complacency, why some people are not risk takers, why some are risk takers, people, when I am saying it's not just individual, you can talk about society, you can talk about countries also, ठीक है ना, so why it is not happening, जहां रिस्क हुआ वहां पे क्या हुआ, जहां रिस्क नहीं हुआ वहां पे क्या हुआ, है ना, तो रिस्क इज सो इम्पोर्टेंट, या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना इज सो इम्पोर्टेंट, सो क्या हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना, वहां पे इट शुड बी, योर डिसीजन शुड बी विद लॉजिक एंड इंट्यूशन, है ना, इट शुड नॉट बी ब्लाइंड ऑल्सो, है ना, रिस्क, भैया रिस्क उठाने दो बच्चे को, आग जल रही, बच्चे को बोलो जाओ तुम घुस जाओ, दैट इज नॉट रिस्क, है ना, उस एंगल को भी आप डाल सकते हो, है ना, कि आप जो है, अब ये नहीं है कि आप जो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स विजनरी थिंग, इट रिक्वायर्स करेज, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, सोसाइटल स्ट्रेंथ, है ना, तो थिंक इन अ जनरल मैनर, डोंट जस्ट थिंक अराउंड योर topics as subject specific, ठीक है, so that is what is required, then you write your different aspects in your essay according to, चाहे आप why when जैसे करना चाहो, आप अपने writing का flow जैसे बना रहे हो, ठीक है। now another problem that we face is how to connect, है ना, how to connect, that is where some people say flow is missing, है ना, आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो, सो देयर आर कनेक्टिंग वर्ड्स ऑल्सो, यू कैन यूज कनेक्टिंग वर्ड्स, है ना, जैसे आप you can say कि risk taking has shown, or the people who have shown risk, sorry, taken risk, है ना, they have shown exemplary achievements in various fields, मान लो आपने किसी का इकोनॉमिक्स का बता दिया, but it is not just only in economics, we have seen it in the field of social या governance issues also, you can talk about it, ठीक है, so risk taking is very important, but should it
बी ब्लाइंड रिस्क, देन यू टॉक अबाउट द अदर थिंग कि उसका उसका अपोजिट का बात कर सकते हो, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज कनेक्टर. कनेक्टर जो है ना, आजकल एक तो वो थीसिस एंटीथेसिस कनेक्टर, ये टर्म्स हैवी वर्ड्स आ गए है ना. आपको कनेक्शन जो जोड़ना है ना, whichever language you are comfortable in, you are comfortable in Tamil, you are comfortable in Odia, you are comfortable in Hindi, English. आप सोचो कि you are telling a story to somebody, तो आप एक लॉजिकल स्टोरी कैसे उसको बता रहे हो, आप कैसे एक बात से दूसरे बात में जा रहे हो, है ना. तो जो वो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही कनेक्टर आएगा फ्लो में, है ना. इफ यू बिकम वेरी मैकेनिकल कि नहीं कनेक्टर तो मुझे ये ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे, यस ऑफ कोर्स वी हैव कनेक्टिंग वर्ड्स, वी हैव कनेक्टिंग आपके जो हैं सेंटेंसेस. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ कनेक्टिंग वर्ड. या आप मान लो जैसे कहते हैं हिस्टोरिकली इट हैज बीन देयर, इन द प्रेजेंट टाइम्स इट इज देयर, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली यू कैन से, इन एडिशन टू दिस, फर्दर मोर, है ना. दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉल्ड एज कनेक्टर वर्ड्स, है ना. है ना, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस. कुछ कंट्रास्ट दिखा रहे हो कि इन कंट्रास्ट टू दिस, इन ऑपोजिशन टू दिस, देन यू टॉक अबाउट द अदर थिंग, ठीक है. या फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हेल्थ, आपने उसके ऊपर एक एस्पेक्ट लिख लिया क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, बट दिस लिंकेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ also puts a pressure on us to think about that how it is impacting efficiency and productivity. फिर उसका इकोनॉमिक एंगल आप स्टार्ट कर दो. So you can do these kind of things, है ना. connecting sentences और what is there in the first paragraph, उसको next paragraph से लिंक करो, उसका लास्ट लाइन को इससे करो, ठीक है. that kind of thing can be done and it happens with practice, ठीक है. और सिंपल तरीका, आप जब सोचते हो कि अगर इफ यू आर टेलिंग समथिंग टू समबडी, तो आप कैसे उसको सीक्वेंस में बताओगे, है ना. तो वही कनेक्शन है ना, वही कनेक्टर्स है. मतलब सिंपल वे यू विल से कि मतलब इतना टेक्निकल है ऐसे में, इतना लोग बताते हैं, शी इज सेइंग कि अपने दिमाग में जैसे सोच रहे हो वैसे ही लिखो. यू डू दैट, ठीक है. टेक्निकल, हमें बहुत टेक्निकल तरीकों से नहीं काम करना है. नंबर नहीं आ रहे, जिस दिन दोबारा से आएंगे फिर वैसा कर लेंगे, ठीक है. पर अभी अभी तो नंबर चाहिए, ठीक है. सो it's very easy to develop the connection. Then there is another way of doing it, okay. If you are not able to, despite all your efforts, if you are not able to bring some kind of connectivity or flow in your essay, use the subheadings, है ना. यू कैन यूज द सब हेडिंग्स, ठीक है. सब हेडिंग्स यूज कर लो, ठीक है. तो सब हेडिंग्स यूज करते हो, है ना. आप कई टॉपर्स की कॉपी देखो, दे आर यूजिंग सब हेडिंग्स. और व्हाट यू कुड डू इज व्हेन यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स, यू कैन सी सब हेडिंग्स इन मेनी ऑफ द एडिटोरियल, ठीक है. तो सब हेडिंग्स डाल के भी यू कैन जनरेट द फ्लो, ठीक है. तो आपने ऐसे लिखा, देन यू हैव कमिंग बैक टू कंक्लूजन. नाउ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन are two very important parts of your essay. Introduction is hooking the examiner and conclusion, भैया इसने इस मुद्दे में इतना तो बोल दिया, लेकिन आगे अगला स्टेप इसके दिमाग में क्या है, ठीक है. poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. So you have shown poverty anywhere is threat to prosperity. पूरी कहानी आपने बता दी. Now when you are writing the conclusion, what do you have some kind of a road map जहां पे आप इस poverty से डील कर पाओ. So do you have some kind of suggestion, है ना. a good essay is a good story and a good story has a moral behind it, है ना. a good story is having a moral also, है ना. नहीं तो ऐसे कहते क्या कहानी सुना दी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना. कोई मोरल है ही नहीं, मतलब वैसी वाली कहानी नहीं. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक राजा था, ठीक है ना. वो शिवाजी की तरह राजा था, उसने ये किया, उसने वैसा किया, यहाँ वहाँ. फिर मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू हैव टू बी ब्रेव, you have to be like decision maker. So that is what is the difference. A good story has a moral. So if you are talking about your essay is a piece of writing, ठीक है. a piece of writing, आप 1200 वर्ड हवा में लिख रहे हो, या आप उसके पीछे, it's like you have to tell the examiner, because this is not a essay writing, or you are not writing it for children who are of like a bedtime story नहीं लिख रहे हो आप, है ना. this is a essay or a piece of work which is written by a would be civil servant,
तो it should have some logic, it should have some sense, it should have some solutions. If you're talking about can capitalism bring inclusive growth in India, ठीक है, आप हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, सब कर दिया, but you are talking about हाँ कर सकता है, how it is doing, no it cannot do, why it is not doing. So is the problem with capitalism or problem is with how capitalism is implemented? So now you talk about how best capitalism can be utilized for the masses. ठीक है, तो आप सजेशन दो, है ना, दैट इज व्हाट, है ना, एज अ सिविल सर्वेंट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना, कि देयर शुड बी अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर शुड बी सम वे फॉरवर्ड आल्सो. ठीक है, जैसे ये शिप इन द हार्बर इज नॉट सेफ बट दिस इज नॉट शिप इज मेंट टू बी. सो नाउ व्हेन यू आर कंक्लूडिंग यू टॉक अबाउट कि व्हाई, अगेन यू कैन सम अप आपका जो कंक्लूजन होता है, जो आपने बात की थोड़ा सा सम अप किया, बट देन नेक्स्ट थिंग है ना कि how to encourage people to go out and sail rather than sitting at the harbor, है ना. so that is where you have to give suggestions, है ना. you जिस भी बारे में आप बात कर रहे हो, है ना, जिस भी बारे में बात कर रहे हो, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. ठीक है, तो अब आप रियलिटी एंड रैशनैलिटी के बीच, रियल और रैशनल के बीच में आप जो है, इट्स डोंट राइट दिस ऐसे ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस, है ना. पॉलिटी क्या, ये मत सोचो कि PSIR ऑप्शनल में थ्योरी पढ़ी है और हम इसको वो कर देंगे, उसमें भी नंबर कम आते हैं. आई टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स आल्सो. ठीक है, नाउ रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. सो क्या हर रियल चीज रैशनल हो सकती है, क्या हर रैशनल रियल हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे, जो रैशनल है उसको रियलिटी में कैसे चेंज किया जा सकता है, गिव सजेशन. और जो रियल है वो जरूरी नहीं है कि रैशनल हो सके, तो जो रियल है वो सही में रैशनल है कि नहीं, उसको आप कैसे देखो. रियल इज आपकी सोसाइटी में पेट्रियार्की, इज इट रैशनल? नो, है ना. रियलिटी इज पेट्रियार्की इज देयर, बट इज इट रैशनल? नो. सो हाउ टू ओवरकम दिस? ठीक है, तो राइट इन योर कंक्लूजन, है ना. पीपल से दैट यू शुड कंक्लूड विद वट एवर यू हैव रिटन इन द ऐसे, उसका कंक्लूजन लिख दो, वाइंड अप कर लो. बट पर्सनली व्हाट आई फील इज, आई नेवर से कि ये तरीका गलत है. आई से एवरीथिंग इज राइट द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट. बट पर्सनली व्हाट आई फील इज, if you in the introduction also you are writing what you are going to write in the essay, in the conclusion also you are writing what you have written in the essay, so it is lot of monotony, you know, it becomes a lot of monotonous piece of work. So what you could do is you can give suggestions, है ना, or you can raise the right questions, है ना, है ना. you can raise the right questions like जैसे ship in the harbor. ठीक है, आपने सारा बोला वेंचर आउट करो, ये करो, वो करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. लास्ट में आपने लिखा कि इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, है ना, वेयर पीपल लाइक, और मूर्स लॉ से कर लो. मूर्स लॉ साइंस वाले समझते हैं कि कितनी जल्दी आपका जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस. सो इफ यू आर जस्ट सिटिंग इन योर कुकून, हाउ फार डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सर्वाइव? यू हैव टू गो आउट एंड वेंचर आउट. डोंट वी, खत्म कर दो, है ना. तो यू आर लिविंग ऑन अ नोट टू थिंक, है ना. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्टाइल. यू कैन नॉट से कि इस तरीके से लिखने से ही होगा. हाँ, ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपके ऐसे में होनी चाहिए. आपके ऐसे में इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, आपके ऐसे में कोहेरेंस होना चाहिए, आपके ऐसे में जो है देयर शुड बी आपका प्रॉपर जो लिखा हुआ है कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप कोहेरेंस होना चाहिए, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डेप्थनेस होनी चाहिए. ठीक है, कंसाइज होना चाहिए. ठीक है, अफेक्टिव होना चाहिए. ये सारी चीजें होना चाहिए. अब इन सारी चीजों को मिक्स करके आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज योर स्टाइल, है ना. एंड व्हाट इज अ गुड ऐसे? देयर इज नो गुड ऐसे, देयर इज नो आइडियल ऐसे यू कैन से, because essay is my essay is my way of writing, your essay is your way of writing. There is no comparison between we two personalities. I might be having something some of the flaws, he might be having some of the flaws in the personality. So it's, there's nothing like perfect essay or ideal essay. ये भी दिमाग से निकाल दो, है ना. कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे एकदम आइडियल ऐसे है ना. एकदम आइडियल ऐसे होता तो 250 में उसको 240 नंबर मिल जाते कि इससे अच्छा तो कोई जिंदगी में नहीं लिख सकता था. ठीक है, 144 इस बार, हाँ, दैट्स द हाईएस्ट मार्क्स. सो
means कि एक good essay should have the combination of these things. A decent essay, you should strive to write a decent essay. Don't go for कि भैया high, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल का ऐसे लिखना है कि इसके बाद कोई ना लिखा है किसी ने पहले ना आगे कोई लिखेगा, ऐसा ये नोशन लेके भी नहीं जाना है आपको, ठीक है. सो बिकॉज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स पुट अ प्रेशर ऑन यू and you are not able to present your own self in your writings. ठीक है. See, this exam is about your आपका जो है mental, आपका जो framework. प्रेशर में जाओगे आप अपने आप को खुल के नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना. सो दैट इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है. सो आपने कंक्लूजन भी कर दिया है ना. कंक्लूजन आइडियली शुड बी इक्वल टू योर introduction. It should be somewhere around 10 to 15% of the essay. ठीक है. उतना आपका conclusion हो गया. Suggestion, some people say conclusion, way forward, some mix it also, है ना. वो आपकी मर्जी है. way forward जो लिखना होता है mainly it is report writing. If you see the government's report, उसमें conclusion and way forward. But generally good essays do not have it. ठीक है. तो way forward is what? Conclusion is yes, there is a problem, people are not ready to accept challenges in life. That's a conclusion. Way forward is how to make people take up challenges, how to make people more adventurous in life. So that is way forward, है ना. देखो, essay writing and report writing, they are two different things. रिपोर्ट में क्या करते हो आप? बेसिकली फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो और उस फैक्ट्स के बेसिस पे एक कंक्लूजन लिखते हो. बट व्हेन यू आर राइटिंग ऐसे इज डिफरेंट फ्रॉम रिपोर्ट राइटिंग, है ना. सो डोंट जस्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स और उस फैक्ट्स को कंक्लूड कर दो, है ना. ऐसे इज अबाउट आपका डिफरेंट डायमेंशंस ऑन दैट टॉपिक, different aspects on that topic, in-depth analysis on that topic. ठीक है. your understanding of that topic and your conclusion of that. रिपोर्ट में आप फैक्ट्स के बेसिस पे कंक्लूजन करते हो, है ना. रिपोर्ट बनती है, एफआईआर लिखते हो, रिपोर्ट, वो आपसे पूछता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फैक्ट हुआ, ये कंक्लूजन हो गया भैया इसके यहाँ चोरी हो गई, है ना. सो जो फैक्ट बताया उसके बेसिस पे, दैट्स द डिफरेंस हियर. और आज के टाइम पे हम लोग उस फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहे होते हैं कोर्ट वाले उसमें भी. दैट्स व्हाई एवरेज मार्क्स आर कमिंग, है ना. सो दैट इज व्हाट, है ना. व्हेन यू आर राइटिंग कंक्लूजन, सो ऐड समथिंग to it. And when the topic is data heavy topic or it is like more scientific topic, try to add some human aspect to it. If you are talking about like space technology, है ना, आपने स्पेस के ऊपर आ गया, या आपका वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज के, मान लो मॉडर्न टाइम्स चेंजिंग वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कुछ आ गया, है ना. तो लास्ट में मॉडर्न वॉरफेयर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड क्या कर रहा है. पहले हम जो है जैवलिन्स लेके जाते थे, आज हम ड्रोन ट्रक में डाल के भेज दे रहे हैं, ठीक है. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन यूक्रेन. सो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अ लॉट, बट नाउ द ह्यूमन एस्पेक्ट टू इट इज वॉर रियली नीडेड. टेक्नोलॉजी कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, है ना. सो सम काइंड ऑफ ह्यूमन एंगल टू इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना. सो दैट इज व्हाट इज लाइक आपका एक ऐसे का इन जनरल दैट इज देयर. नाउ सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इज अंडरलाइन करना है, ठीक है. ऐसे में अंडरलाइन करना है, करते भी हैं लोग, नहीं भी करते हैं. यू कैन नॉट से कि नो यू कैन नॉट, पीपल आर डूइंग इन गेटिंग मार्क्स. मैं बोल दूं नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, वहां आप किसी टॉपर की कॉपी देख रहे हो, उसके 3-4 कॉपी अपलोडेड है, तीनों चारों में अंडरलाइन किया, वो बोल रहा है मैंने एग्जाम में भी किया, उसको नंबर आ रहे हैं. तो यू कैन नॉट से बिकॉज दिस ऐसे इज नॉट अ लिटरेरी ऐसे, दिस इज अ यूपीएससी ऐसे, है ना. द पर्पस ऑफ दिस ऐसे इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज अंडरलाइन और नो अंडरलाइन, इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्टाइल. बट यस, इफ यू आर अंडरलाइनिंग, है ना, तो डोंट मेक इट मोर देन 5 to 7%. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, 1000 वर्ड में 500 वर्ड के नीचे आपने लाल पीला कर दिया, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरलाइनिंग, ठीक है. सो इफ यू वांट टू अंडरलाइन, अंडरलाइन इज बेसिकली टू हाईलाइट. डोंट अंडरलाइन द फुल सेंटेंसेस, ठीक है. ओनली अंडरलाइन सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू वांट एग्जामिनर शुड सी योर वर्ड्स,
ठीक है ना। अभी जैसे आपका सिम्बायोटिक इकोनॉमी इज अ वर्ड, ठीक है, सिम्बायोटिज्म इन इकोनॉमी, तो ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि ये वर्ड एग्जामिनर देखे, आप इसको जो है वो कर लो। सर्कुलर इकोनॉमी लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसको अंडरलाइन करो खाली, बट डोंट अंडरलाइन द फुल सेंटेंस दैट इज देयर। डायग्राम्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, ठीक है। सो अगेन पीपल विद डायग्राम्स आर also getting marks. It also depends on what kind of topic it is. Like say for example, some time back, some years back, we have got topic on border disputes in India, है ना, आपके बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक आया था। इफ यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप हो कंफर्टेबल, इट्स नॉट अ कंपल्शन। if you are comfortable, you may make the map of India, and you can say, you can show ये नेपाल में इधर बॉर्डर का आपका इशू है, LOC में यहाँ है, LAC में यहाँ है, ठीक है, so that is what you can do it, but it's not a compulsion, this is not a geography answer, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ज्योग्राफी का आंसर कॉपी बनाना है, हर पेज में डायग्राम बनाना है, नहीं, जहां पे लॉजिकली बन सकता है, ठीक है। टूरिज्म इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, सो इफ यू आर मेकिंग मैप ऑफ इंडिया एंड शोइंग द टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, एग्जिस्टिंग हॉटस्पॉट्स एंड पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स, ठीक है, आप वैसे करके दिखा सकते हो, बिकॉज पीपल हैव डन इट एंड गॉट मार्क्स, ठीक है। तो यू मे डू इट, but if you are not at all comfortable, please avoid it, ठीक है। and if you are making it, then it should be in a very nicely mannered, like it should be presented in a very nice manner. Make it in a box, like your NCERT books में diagrams box में होते हैं, proper labeling होती है, clean होते हैं, that kind of thing. Interstate water dispute in federal India, question that was asked by UPSC in your question paper, UPSC. So if you can make the map of India, and jahan jahan interstate water dispute hai, you can talk about yahan hai, yahan hai, yahan hai, theek hai. So it is optional for you. If you can, make it. If you cannot, avoid it. Nobody is going to cut marks ki tumne jo hai diagram nahi banaya. Then what happens is quotes. सम पीपल से भैया कोट 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 बहुत सारे कोट्स आने चाहिए, ठीक है, आते हैं तो भी ठीक है, विदाउट कोट भी नंबर आ रहे हैं, है ना। यूपीएससी कोट दे रहा है, उतना ही समझ लो, जिसको नहीं कोट रटने की आदत है वही समझ लो, उतना ही काफी है, ठीक है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, राइट इट, नॉट कंफर्टेबल, अवॉइड इट। इससे आसान पेपर कौन सा होगा, है ना। जीएस में जैसे क्रिटिकली एनालाइज, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन क्रिटिकली एनालाइजिंग, बट यू हैव नो ऑप्शन, है ना, वहां पे यू डोंट हैव ऑप्शन। इफ दे आर सेइंग discuss the pros and cons of India's growing relationship with Taliban regime, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि तालिबान, बिकॉज टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, अगर वो आपके दिमाग में, तो आप कुछ भी करो, आपको दोनों लिखना है। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इन योर ऐसे पेपर, है ना, द इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो आप पॉजिटिव ही दिखा दो, नहीं लिखना, नेगेटिव मत ले, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट पेपर्स। Why you make it so difficult in your minds? It is very easy paper, ठीक है। तो quotes आते हैं लिखो, नहीं आते हैं मत लिखो। If you recall who has given the quote, you can quote it by name. If you do not know who has given the quote, simply write it, somebody has rightly said, है ना। आपको पता ही नहीं किसने बोला है, रियल इज रैशनल हेगल का आपको नहीं पता, कहीं आप यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता, तो यू इट इज राइटली सेड दैट रियल इज रैशनल, खत्म काम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, है ना, इतना इतना लिबरल पेपर कोई और नहीं है, ठीक है। सो कोट करना है नहीं करना है, इट इज अप टू यू। अंडरलाइन करना है नहीं करना है, इट इज अप टू यू, बट अंडरलाइन शुड नॉट, आपका जो है, इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज हिंडरिंग द पर्पस ऑफ अंडरलाइन, है ना। इट शुड बी वेरी वेरी टू द पॉइंट, है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना, लाल पीला कॉपी को नहीं करना, वो एग्जामिनर को करने दो, ठीक है। डोंट मेक इट कि लाल पेन से इसको, पीला पेन से इसको, नो 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 नो, डोंट डू दैट, ठीक है। So underlining or not underlining, quotes, yes. Can we write something? I am writing the essay in English, but I know a very good poem from Tamil,
So can I write this Tamil poem? Yes, but don't write in Tamil. ठीक है, don't write in Tamil because the person who is checking your copy is from Nagaland. He does not know Tamil. ठीक है, so what you could do is you can write it in English, है ना, उसको इंग्लिश में आप लिखो and then explain the meaning of it. आप कहीं पे लिख रहे हो, मान लो ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर ऐसे आ गया, ग्लोबल डिप्लोमेसी आजकल वर्ल्ड में ऐसे डिप्लोमेसी चेंज ही हो रही है, लुक एट ट्रम्प, है ना, लुक एट हमारे भी मतलब डिप्लोमेसी इज चेंजिंग, आउटरीच हम कर रहे हैं, ठीक है, सो डिप्लोमेसी इज चेंजिंग, देयर कैन बी अ टॉपिक ऑन चेंजिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी. और कहीं पे आप डिप्लोमेसी की जहां पे भी बात करो, वी हैव सर्टेन थिंग्स और सर्टेन फिलोसफीज लाइक वासुदेव कुटुंबकम. हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, our principal philosophy. So if you want to write Vasudev Kutumbakam, so what you could do is you can write Vasudev Kutumbakam but not in Hindi, you know, not in Hindi like Vasudev Kutumbakam. ठीक है, don't write like this, है ना, you have to write like this and then explain the meaning. So you can write poems, poetries of different languages, ठीक है, आप लिख सकते हो, but it should be decent one, it should be formal one, ठीक है. Songs, people are writing meaningful songs from Hindi movies, they are writing, है ना, ऐसा मतलब, पर यो यो हनी सिंह नहीं लिखना है, ठीक है, वो नहीं डालना है इसमें, ठीक है. सो यू हैव टू राइट सॉन्ग्स जो बहुत सारे मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं हमारे मूवी के, ठीक है ना. तो दैट इज, मान लो आपको कोई सॉन्ग, कोई रिलेशनशिप, गॉड, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई ऐसे आता है, ठीक है, तू ना जाने आसपास है खुदा, है ना, दैट इज व्हाट, है ना, गॉड इज एवरीवेयर, है ना, so that is what meaningful. So meaningful songs, why I am saying, because people are doing it and getting marks, ठीक है, तो पीपल आर डूइंग इट एंड गेटिंग मार्क्स, बट पूरा गाना नहीं लिख देना है, 2 लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पीपल आर इवन राइटिंग एनेक्डोट्स फ्रॉम आपकी साईफाई मूवीज, ठीक है, वहां से भी एनेक्डोट लेकर के लिख दे रहे हैं, ठीक है. इट शुड बी, सी वट एवर यू आर डूइंग, दैट इज योर क्रिएटिविटी, है ना, दैट इज योर क्रिएटिविटी, बट देयर यू हैव टू बी लाइक वेरी फॉर्मल, है ना, आपको बहुत फॉर्मल होना है, बिकॉज यूपीएससी एग्जाम इज अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, आपको बहुत फॉर्मल होना है, आपको वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, इट शुड बी टू द पॉइंट. That is what your directive is also saying. So if you are quoting any example by song, by writing a song, ठीक है, आप उस song को मतलब टू द पॉइंट हो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं कि चलो इस बार गाना लिख के देखते हैं क्या पता 120 आ जाए, ठीक है, ऐसा ना हो 20 भी आ जाए. 32 तक नंबर आए हैं, people are getting as low as in 32, 35, 40. I have mark sheets, ठीक है. सो इसलिए, और वो भी वो लोग, एक बार तो ऐसा केस है जो ऑलरेडी यूपीएससी क्लियर करके जॉब में है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज देयर, ठीक है. तो आपको माइंडफुल रहना है ना, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, आप ये कर सकते हैं. नाउ अनदर फियर इज अबाउट लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज इज ऑल्सो समटाइम्स इट्स अ बैरियर इन अवर माइंड्स, because many of us, है ना, we are very good in English, but many of us are not at all good in writing English, है ना, कई लोग लिखने में अच्छे नहीं है, कईयों को ये भी प्रॉब्लम होता है. शुरू में कई बच्चे आते हैं, वो आकर के बोलते हैं मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, ऐसे कैसे करेंगे हम, इंग्लिश के लिए क्या करें, कोई कोर्स कर लें, ठीक है. व्हाट, सी, this is not the test of your English language, है ना, this is what I always say. Had it been a test of your English language, then people with English literature optional would have got the maximum marks, but this is not the scenario, ठीक है. So but then are they testing your English or Hindi, whichever medium you are writing? Yes, they are testing your language skills. ऐसा नहीं कि लैंग्वेज स्किल टेस्ट नहीं हो रही है, तो क्या टेस्ट हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज टेस्ट हो रही है, ठीक है. सो एक तो अ गुड communication needs a good language,
है ना, सिंपल लिखो। एनसीईआरटी कम्युनिकेट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ द आपके जो आपके टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ योर थ्योरीज टू यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. So it's a good way of communication. ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, सो लैंग्वेज का जहां तक पार्ट है, ठीक है, फ्लारी लैंग्वेज चाहिए जरूरी नहीं है. आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अब 2 महीने हम जो है शशि थरूर की वोकैबुलरी रटने में लग जाएं तो इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. या 2 महीने के अंदर अब हम अपनी लैंग्वेज जो है द हिंदू की तरह लिखना शुरू कर दें, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, सो देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? बेसिक grammatical mistakes should be avoided, whether you are writing in English, Hindi, or any regional language, if it is permitted by UPSC. Basic grammar mistakes, grammatical mistakes should be avoided. Language should be parliamentary, decent language. Language should reflect positivity. और ये पॉजिटिविटी जो है आपके कंक्लूजन्स में भी होनी चाहिए. ठीक है, जब आपका जो कंक्लूजन होता है ना, उसमें मान लो आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? नहीं आ सकता है. कैपिटलिज्म आने के बाद ही क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया, उसके बाद ही हैव एंड हैव नॉट्स की डिवाइड बढ़ गई. आपने सब कुछ लिख दिया कि भैया कुछ नहीं हो सकता कैपिटलिज्म से. ठीक है, नो. एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, है ना, कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड, हाउ वी कैन refine it, and how we can redefine it, how we can from crony capitalism we can move to moral capitalism. ठीक है, सो आपको अपना जो है पॉजिटिविटी, दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट. अगर सिविल सर्वेंट पेसिमिस्ट होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, है ना. तो पॉजिटिविटी, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी वेरी डिसेंट, टू द पॉइंट. एंड इफ यू हैव गुड लैंग्वेज कंट्रोल, कमांड ऑफ गुड, आपका जो है सेंटेंसेस वगैरह बड़े बड़े भी अच्छे से लिख सकते हो. ठीक है, नहीं लिख सकते हो, ट्राई टू राइट सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड, है ना. छोटे छोटे जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको अवॉइड करना है. बाकी डोंट गो फॉर वेरी लाइक a flowery language or something. It's not at all required. People from the remotest part of the country, and people from one of the most आपके challenging geographical areas जहाँ पे उनके पास स्कूल का अच्छा एक्सेस भी नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है. ठीक है, वो भी लिख रहे हैं सिंपल और सेलेक्ट हो रहे हैं और अच्छे रैंक ला रहे हैं, है ना. यू हैव सीन एग्जाम्पल्स एवरी ईयर, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आप स्टीफेंस में पढ़ रहे हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं तभी आपको ऐसे में नंबर आएगा, ऐसा नहीं है. वी हैव एग्जांपल्स. इस साल भी आप देखो कितने सारे, कोई कुक का बच्चा है तो कोई डेली वेज अर्नर है. ठीक है, कोई दिहाड़ी के मजदूर का बच्चा है. ठीक है, सो पीपल आर, इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स ओनली अबाउट योर पर्सनालिटी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. लैंग्वेज तो सिखा देंगे बुला के, बट हाँ बेसिक तो थोड़ा ठीक होना चाहिए आपका. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस, है ना. तो लैंग्वेज का पार्ट ये है, पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. एंड पूरे ऐसे में देयर इज अ अंडर करेंट. अंडर करेंट जैसे कहते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी में एक अंडर करेंट है. जैसे यू कैन सी द पर्सनालिटी और कंपेयर द पर्सनालिटी ऑफ गांधी जी vis-a-vis हिटलर. हिटलर की पर्सनालिटी का अंडर करेंट इज अग्रेशन, एंड गांधी जी के पर्सनालिटी का अंडर करेंट इज ह्यूमिलिटी, कंपैशन, नॉन वायलेंस. ठीक है, सो दैट इज what should be the undercurrent of your essay. Undercurrent of your essay should be your preamble. Undercurrent of your essay should be your DPSPs. Undercurrent of your essay should be your Universal Declaration of Human Rights. Undercurrent of your essay should be humane values. समझ रहे हो क्या मतलब? व्हाट आई मीन टू से इज कि अंडर करंट आपकी ओवरऑल राइटिंग्स में दिखना चाहिए दैट यू आर समवन हु रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, यू आर समवन हु रिस्पेक्ट्स प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यू आर समवन हु रिस्पेक्ट्स आपका जो है मान लो पेरिस क्लाइमेट डील, उसके जो आपके
जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, यू रिस्पेक्ट. सो अंडर करेंट शुड बी समथिंग विच इज लाइक दिस, है ना, दैट शुड बी देयर, है ना. तो आपके पूरे ऐसे को पढ़ के ये नहीं लगना चाहिए that you are एंटी पुअर, है ना, यू आर एंटी पुअर, है ना, पुअर पीपल. ठीक है, वो नहीं करना चाहिए आपको. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एम्पथी, सिंपथी, बिकॉज अ सिविल सर्वेंट हैज टू बी लॉजिकल, बट उसमें एम्पथी भी होनी चाहिए, है. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो ये आपका अंडर करेंट होना चाहिए ऐसे में. एंड अनदर थिंग इज व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, sometimes you have a question where they are asking you a question with a question mark, or they have given a statement with a question mark, है ना, है ना. तो ये जैसे न्यू विमेन, अ मिथ और रियलिटी, इंडिया में पूछा हुआ है इन्होंने. ठीक है, फिर उसी तरह आपका कैपिटलिज्म कैन ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ और नॉट, क्वेश्चन मार्क, है ना. और शुरू में आई हैव रेड क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 एंड देयर वर क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, with a question mark, so how to proceed it? It is always advisable that don't open your cards in the beginning, because अगर आप शुरू में ही लिख दिए कि जैसे कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, आपने शुरू में ही लिख दिया नो, भले बाद में आप यस भी कर रहे होंगे, तो द रीडर हैज दैट इन द माइंड कि इसका माइंडसेट इज कंप्लीटली अगेंस्ट कैपिटलिज्म. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना. अ क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपको बोला जा रहा है जजमेंट करो. अ गुड जज इज वन हु लिसन्स टू बोथ द साइड्स एंड देन कम्स टू अ कंक्लूजन. अच्छा जज कौन होता है? कोर्ट में क्या होता है, आपने बोला भैया इसने हमारे हमारे किसी का मर्डर किया, फिर भी सुनते हैं उसकी बात, because a good judgment is listening to both the sides. Because if you are only listening to one side, you are favoring only one side. ठीक है, सो आपके जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, इट इज माई एडवाइस, है ना, इट इज अप टू यू आपको जो करना है, बट आई वुड सजेस्ट डोंट राइट योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि यस कैन कैपिटलिज्म और शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड इन इंडिया, यस इट शुड बी अबॉलिश्ड, or no it should not be abolished, है ना. So come, don't write in the beginning. First in your essay you write both the aspects. Tell the examiner I know that why capital punishment should go away from India, because we are a civilized society. Any civilized society does not practice this, but despite India being a land of non-violence, despite India being a land of Buddha, despite India being a land who respects human rights, Universal Declaration of Human Rights, why we still have it? What is compelling India to have capital punishment? Uske logics do. And then you conclude कि आइडियली इट शुड नॉट बी देयर, बट ये रीजंस हैं जिसके चलते है. तो जब तक इन रीजंस को वी डू नॉट ओवरकम, और उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए गिव सजेशंस, है. सो दैट इज अ मोर बैलेंस्ड वन, rather than just saying ki no or yes, है ना. When the question mark is there, they are asking to judge. A good judge is who is listening to both the sides. So you tell the examiner, I know this also, I know this also, but my stand is this. Otherwise if you are not telling the other side, तो उसको लगेगा कि आपको तो उस साइड का पता ही नहीं, तो एक ही आर्ग्यूमेंट के ऊपर you are showing your stand. So a good question mark wala essay should have both the aspects. Plus another thing that often is criticized is ki, or discussed is ki, if there is a quote or there is some philosophy, so should we go by the philosophy or can we contradict also? ठीक है, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि क्या हम उस फिलॉसफी के साथ ही चलें, ठीक है, या उसको कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं. तो if you have all the right logics to contradict that philosophy, you do it. But golden rule is, which is generally we have seen, which has given marks to the students also, you can contradict but don't make it 50-50. ठीक है, don't make it 50-50, है ना.
what you can do is you can go with the flow 70%, 70-30, 80-20, है ना. आप जो flow है उसके साथ maximum लिखो, contradiction is कम करो. अब जैसे real is rational, you talk about real is rational, आपने सारा aspect किया, but contradict करो, or everything real is not rational. Reality is war. Is it rational? People dying? No. ठीक है. Reality is in the name of your nationalism, what you are doing in Gaza. Is it rational? No. So you can contradict also, but it's not कि आप 50-50 करो, है ना. Go with the flow maximum 75-25, 80-20, है ना. You can show it, but don't make it equal, है ना. ये भी एक avoid करना, because what I have, like, people अभी recently भी one of the students he said he has got IPS, but he said कि मेरे को ऐसे में मुझे लग रहा है इसलिए कम हुआ क्योंकि I have made it complete 50-50. You should at least देखो, they expect you to go with the flow. Contradiction जो है वो आप point out करो, but it should not be the highlight, the full highlight or maximum of your essay. ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना है. ठीक है. So these are simple do's and don'ts with respect to essay in general. So if you have any questions, please ask. Yes. I would suggest you read the copies of all the toppers. ठीक है. और उसमें क्या है कि आपको ये भी खाली गुड वाला मत देखो, आप ये देखो कि ये टॉपर तो है लेकिन ऐसे में क्यों नहीं आया, कहाँ, और जिसको ऐसे में आ रहा है हो सकता है उसका रैंक वहां ना हो लेकिन उसको ऐसे में ज्यादा क्यों आ रहा है. दैट विल गिव यू. इट्स नॉट ओनली वही तो गड़बड़ है, बस कोई बोल देगा मैंने ऐसे किया इतना नंबर आया, अब मैं आंख बंद करके उसी को फॉलो कर रही. दैट्स द प्रॉब्लम. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू सी द कॉपीज ऑफ डिफरेंट पीपल, है ना. यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हियर, है ना. हमारे में भी अपलोडेड है. लास्ट ईयर के भी रैंक 159 दे हैव रिटन टेस्ट विद अस. दिस ईयर आल्सो यू हैव रैंक 1 विद अस. ठीक है. और उसके बाद 14 और भी सारे रैंकर्स हैं, कॉपीज वी हैव अपलोडेड, है ना. और भी आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे डिसेंट वन, उनके यहाँ कुछ टॉपर्स होंगे, उनकी कॉपीज अपलोडेड होंगी. यू कैन सी इट फ्रॉम एनीवेयर. सबको देखो और अपना अपना करना है. डोंट ट्राई टू ब्लाइंडली फॉलो एनीबॉडीज थिंग. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज, है ना, यू कैन डू. यस. देखो मैं क्या बोला, आप किसी भी अप्रोच से करो, लॉजिक बनना चाहिए. और आपका जो ऐसे का जो एसेंस, जो जो यूपीएससी ने डायरेक्टिव्स दिया है वो फॉलो होना चाहिए उसके अंदर. यू विल गेट मार्क्स. इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो बाय ओनली वन अप्रोच. देयर इज नो वन वे ऑफ राइटिंग ऐसे. ठीक है. So if you are talking about calm, if you are writing about Buddha, what were the characteristics of Buddha, how Buddha's characters were different from दूसरा क्या आपने एग्जांपल दिया. ठीक है. चलो, बुद्धा अशोक हो गया, किसी मॉडर्न टाइम में आपने किसी का लिया, तो आपने अलग अलग करेक्टर, सब में चीज कॉमन क्या है, कामनेस. तो यू कैन शो द डाइवर्सिटी एंड देन वन थिंग कॉमन इज कामस. ठीक है. सो दैट इज, है ना. तो इस तरह से किया जा सकता है. एंड नाउ जस्ट ब्रीफली आई एम टेलिंग यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द टेस्ट सीरीज जो हमारा जो भी है ये. सो कल जो है व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल ट्राई टू सी हाउ डिफरेंट थिंग्स वी कैन ऐड लिंकेजेस, या कैसे डिफरेंट चीज़ों से हम अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने ऐसे में. ठीक है. दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा PYQs डिस्कस करेंगे, सो दैट those who are writing it for the first time, so थोड़ा सा एक मतलब familiarity with essay PYQs we will be doing. And then we are going to have our tests also. So first test is going to be on 8th of this like 8th of June. ठीक है. तो
कई लोग अभी रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इफ यू हैव मिस द ट्रेन ऑन 8 तो आप दोबारा नहीं चढ़ सकते हो, आपको जब लिखना है आप तब लिख सकते हो, ठीक है. सो वील बी हैविंग 5 टेस्ट 40 टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि 1 टेस्ट इज 8 टॉपिक्स, सो 8 5s are 40 टॉपिक्स, एंड वी विल डिस्कस, we focus every year, those who have attended the program before also you can talk to them. यहाँ पे I am not going to give you any sample essay, ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे लिख देना आप, है ना, या इस पेज में ये कर लेना उसमें, नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है. वी विल जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, वी विल जस्ट ट्राई टू थिंक in whatever possible manner we can, and we will do it together. You will come out with your things, I will come up with my things, so that you have lot of things, and then you are getting your copies checked, ठीक है, आपको कॉपी चेक होकर के मिलेगी, ठीक है. वी हैव अ टीम ऑफ पीपल हु आर चेकिंग द कॉपी, and they do it very wonderfully. We sit together before like we assign the copies to them, I sit with them, I discuss with them कि इस कैसे कैसे किया जा सकता है, and then you get a copy with lot of feedback, ठीक है, feedback which is relevant, ठीक है. अभी अगर बहुत ज़्यादा और relevant feedback आपको मिलेगा, relevant in the sense doable, ठीक है, doable feedback, because supposedly you are 23 years of age, you have a certain handwriting. Now in the last 1 month I am saying your handwriting is not legible, change it. You cannot do it, है ना. इतना खाली का कुछ वर्ड्स हैं आपके, जैसे आपके हैंडराइटिंग में ई और आई में अंतर है, तो वैसे छोटे मोटे मिलेंगे, बाकी द फीडबैक वुड बी मोर which you can actually work upon in a very short period of time, ठीक है, तो वो होगा. and then after getting your checked copies, if you want to come and sit with me one to one, we will do that also, ठीक है. if you want to come physically, if you are writing mains, तो कई बार time becomes a constraint, ठीक है. शुरू शुरू में तो एक दो बार हम आ जाते हैं, फिर बाद में जब सारा प्रेशर होता है, you have to do everything. So in that case also we are very flexible. If you want to come physically, well and good. If you do not want to come physically, we can fix a time, ठीक है ना. you can send your copy, मेरे से बात कर लो, you can send your copy, I can go through your copy, and then we can fix a time and discuss it over the phone, ठीक है. तो that thing we will do, because again and again जो सबको पता है ये बात, but still I am repeating it, ऐसे कैन नॉट बी टॉट, है ना, मतलब मैं तो नहीं सिखा सकती हूँ. इट इज नॉट, नो वन कैन, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, है ना. कोई किसी को ऐसे नहीं सिखा सकता है, और अगर हमें लग रहा है कि हम ऐसे सीख ले रहे हैं तो वो एवरेज नंबर आ रहे हैं हमारे को, है ना. अगर एक तरीके से हम जीएस की तरह ऐसे सीख के लिख भी रहे हैं तो एवरेज नंबर आ रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे सिखाया नहीं जा सकता, हाँ डिस्कस किया जा सकता है. आपकी इश्यूज हैं, आपकी कनेक्शन, लाइक समबडी सेड कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप लिख के लाओ, देखें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, सो दैट ऐसे होता है ना, मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं ऐसे करके देखो, और शायद ऐसा हो गया तो फिर आप सीख, है ना. तो दैट इज व्हाट आवर फोकस इज थ्रू दिस, ठीक है. और 80 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, 80 थीम्स में, and we try to keep as close as to the demand of UPSC, है ना. टॉपिक्स हम कोशिश करते हैं जितना हम UPSC से मैच कर पाए, तो वैसा कोशिश करते हैं हम, ठीक है. तो वैसा ही रहेगा, ठीक है. so that is what is all about this program also, and if you have any doubts, any queries, you can ask, ठीक है. तो now wait, yes. Time management also becomes a problem, हाँ. और कई बार ये भी होता है कि दोनों के पॉइंट्स भी बहुत मिल रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स भी बहुत मिल रहे होते हैं, है ना, क्योंकि वो हमने एक अप्रोच फिट की होती है यहाँ पे ना, तो उसके अराउंड ही चल रहे होते हैं, तो वो बड़ा मोनोटनस भी हो जाता है, और वो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितना आप क्रिएटिव हो सकते थे जबरदस्ती आप एक में हो गए, दूसरे में फिर वही अप्रोच में आ गए, है ना. दैट मेक्स यू कि भैया अब तो मतलब आधे के बाद कई बार मन भी नहीं करता है, लोग बोलते जैसे तैसे खत्म किया, है ना. so that is what is there, no. so you have to go beyond that mold of one way of thinking, है ना. और एक और चीज होती है कि if we are getting 2 essays, not if we are actually getting 2 essays, so should we write in the same manner, or should we try to one essay in a different manner, another in a different manner,
जैसे मान लो कोई आपने स्टोरी के फॉर्म में लिख लिया, कोई एनेक्डोट के फॉर्म में लिख लिया, है ना, तो दैट इज थोड़ा सा मॉड्यूलेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, है ना, तो दैट इज लाइक कि आप फंस क्यों जा रहे हो, क्यों आप में वो मोनोटनी आ रही है ना, तो वो आप आकर के लाइक यू ब्रिंग योर कॉपी व्हील सेट, है ना, तो आपकी मोनोटनी क्यों हो रही है, तो इफ आई विल सी योर फर्स्ट ऐसे एंड देन आई विल से कि वही चीज का रेपिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोनोटनी आ रही है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना, और कई बार क्योंकि टॉपिक्स सिमिलर से हो जाते हैं तो यू हैव समटाइम्स यू हैव सिमिलर पॉइंट्स फॉर इट, देन यू डिवाइड इट. ये नहीं करो कि जो 50 इधर लिखे वो 50 भी इधर लिखने हैं, ठीक है, उनमें से जो मोस्ट फिट वहां बैठते हैं, अप्रोप्रिएट बैठते हैं, 10-15 वहां कर लिए, 10 वहां कर लिए और वाकई में कुछ यहाँ ले आए. तो व्हेन यू आर रिपीटिंग योर पॉइंट्स, रिपीटिंग योर एग्जांपल्स, आपको वो मोनोटनी आ जाती है. एंड वे ऑफ थिंकिंग में भी वो जो होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी, अगर, और इसीलिए कई लोग, मेनी पीपल से कि हम दोनों एक साथ पहले ही ब्रेनस्टॉर्म कर ले ताकि फ्रेश रहे, मोनोटनी ना आए. तो लेट अस ट्राई टू वर्क अपॉन डिफरेंट वेज कि जहां आपकी मोनोटनी ब्रेक हो जाए, ठीक है. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट that if you are comfortable in writing one types of essay in the test series, you venture out in different आपका जो है types and different topics. कई बार क्या होता है कि हमको जो अच्छा लगता है हम उसी में लिखते 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 ना आप परफेक्ट होने की कोशिश करते हो उसमें, बट द पॉइंट इज कि उसमें परफेक्ट हो जाओ, इट इज गुड, बट इज विच एवर इज योर स्ट्रेंथ, वट एवर इज योर स्ट्रेंथ, यू फोकस ऑन इट. But if there is a weakness on some topics, please write it here, है ना, prepare for the rainy day. अगर उस दिन it's not your day, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे uncomfortable टेस्ट सीरीज में प्लीज राइट ऑन uncomfortable topics also, बिकॉज दैट विल, अगर कुछ भी आप अनकंफर्टेबल में लिख लोगे ना तो उससे आपका एक मोरल बूस्टिंग होगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, अगर एग्जाम में ये आ जाता है एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एटलीस्ट आई कैन मैनेज, ठीक है. सो ट्राई टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ एसेज हियर, है ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, कोर्ट्स, एवरी काइंड ऑफ एसेज यू ट्राई टू राइट हियर, ठीक है. एंड जिसमें आप सबसे ज्यादा घबराते हैं वो तो जरूरी लिखो, एंड डोंट गो बाय द मार्क्स. टेस्ट सीरीज के मार्क्स में भी नहीं जाना है, ठीक है. यहाँ पे आपको कम से कम भी आ जाएगा तो भी इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के टॉपर भी बन जाओगे तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस इफ यू आर राइटिंग टेस्ट सीरीज हियर और एनीवेयर इज योर फीडबैक. फीडबैक में भी आपको जो है ध्यान उसमें देना है विच इज डूएबल इन दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना, उससे ज़्यादा पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है. तो आपको जो आप कर सकते हो उस पर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है. सो दैट इज, है ना, सी एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू जस्ट गेट सम डिसेंट मार्क्स. ऐसे का टॉपर नहीं बनना है, आपको लिस्ट में नाम चाहिए, है ना. सो दैट इज व्हाट इज देयर, ठीक है. Anyone has any issues, any questions, any? Yes. लैंग्वेज पेपर जो आपका कंपलसरी पेपर है ना, कंपलसरी पेपर में तो दे आर यहाँ पे तो दे आर लुकिंग फॉर इन डेप्थ, दैट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर कि आपको एक बेसिक इंग्लिश में आप कुछ पीस ऑफ राइटिंग यू कैन डू. कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा लिख के आ जाओगे तो कोई मना थोड़ी ना किया हुआ है ना, बट द मेन इज वो क्वालिफाई होना चाहिए. और यहाँ पे यू कैन फॉलो, ऐसा कुछ नहीं है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, ठीक है. चलो फिर, थैंक यू.